मेरा ख्याल है आप एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हैं, सॉरी एक बेसिकली एक ब्रीफ दे सकते हैं स्टार्टिंग में कि GKA के बारे में और अपने बारे में, एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ। आई थिंक इतने में लोग भी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि 3 मिनट हो गए हैं। एक आध मिनट और देते हैं लोगों को ज्वाइन करने के लिए, देन वी कैन स्टार्ट ऑफ। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है, I think we can get started. Assalamu alaikum everyone. Thank you everyone for joining. My name is Umair Aslam. I am from batch 15. These days I'm working as VP Marketing GIK Alumni Association. So उसमें हम different activities कर रहे हैं. Primarily during the Ramzan, our goal was to get the donations and funds for our different activities happening for the current deserving students. उसके अलावा भी the goal was to engage our students, especially the graduating batch, with our alumni, to just to give them more exposure that if they want to get admission is masters or PhD, or whether they have to decide if we should go for a job or masters, how or what factors they should be keep in their mind to decide that. And along with that, the plan is that we'll continue to have this series in which, again, previously we did a session on how to get scholarship abroad for masters and PhD. The current session will be doing, again, it's focused on in how to enhance interviewing skills. So we have a very diverse panel. We have with us three of our alumni from Batch 9, Abdul Hasib Bhai, Fahad Bhai, and Altamash Bhai. I won't go into much details of their introduction. They'll give a brief introduction for themselves again. And for the patron, what the plan initially we were that we will first be giving you guys some tips on how to nail an interview or how to prepare for interview. But just before this call, we were discussing, and so what we have decided is we'll be starting with the mock interviews, and from there, again, whatever feedback we have, whatever pointers we want to share with you guys, we'll start sharing. And again, anyone who has questions, just raise your hand. We have an option to raise the hand on this meeting, or if you want to type, or once the interview is finished, you can ask a live question as well. For everyone's information, we'll be recording this session, so for people who are not able to attend this call, they should be able to refer it later on. So once again, thank you everyone. We'll get started. I'll think starting from the Altamash Bhai. Altamash Bhai, if you can give a quick introduction, and then we'll take it from there. Thank you. Of course. Assalamu alaikum everyone. My name is Altamesh, from Batch 9, computer graduate. अब तो काफ़ी टाइम हो गया है. It's been tens of years since then. So I think the I did my studies in engineering, and then after that I moved to Standard Chartered as part of the management trainee program. And then management trainee program is not specifically कि मुझे एक industry में जाना था. It was just to get into a large MNC. And then after that I've stayed with banking. Standard Chartered के बाद I worked with MCB. MCB के बाद I moved to the UAE. I live in Dubai right now. I'm with HSBC for the past 5 years. So that's the path that I've taken. But but we've kind of kept engaged with our let's say technology batchmates as well to kind of get an idea of के उनकी ज़िंदगियाँ कहाँ जा रही हैं and how we have gone down our path. So it's been an interesting experience. I think the idea of today's session was this has been as Umair mentioned, there's काफ़ी सारे सेशंस हुए हैं और इस सेशन में हमने ये कोशिश की थी कि इस बारे में बात हो के इंटरव्यूज़ के दौरान क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए. कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे. हम लोग, मैं, फहद, अब्दुल हसीब, हम लोग मिलकर आपके साथ इंटरव्यूज़ करेंगे. एंड ऑफ कोर्स जो भी उसमें फीडबैक होगा वो भी आप लोगों को देंगे. उसके बाद आखिर में ऑफ कोर्स आप लोगों के सवाल भी होंगे. आइडिया मेरे ख्याल से जहाँ तक बहुत समराइज तौर पे ये है कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है. आप जहाँ पे भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ आप भी होंगे और कई और लोग भी होंगे. सो हाउ डू यू कम्पीट विद सो मैनी पीपल इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी दैट एड अप टू अ मोर कंपेटिटिव पोजिशनिंग, और वो कैसे करनी है. ऑफ कोर्स I'll hand over to Fahad for his intro. So thanks, Altamash. Hello everyone. I'm Fahad from Batch 9 GIK. मैंने भी computer science में
ग्रेजुएट किया था, आई थिंक 2003 में हम ग्रेजुएट हुए थे। सिंस देन मैंने भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें की हैं। मैंने ऑयल कंपनी में भी काम किया है एज अकाउंट मैनेजर, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी काम किया है, कुछ टेक सेल्स में आजकल काम कर रहा हूँ। बीच में मैंने मास्टर्स किया था फाइनेंस और बिजनेस स्ट्रेटजी में भी, कंसल्टिंग में भी कुछ काम किया था। तो डिफरेंट वेरियस किस्म की चीज़ों में मैंने काम किया है। कुछ अर्सा मैंने यूके में गुजारा, कुछ काम पाकिस्तान में किया, कुछ यूएस में किया। मास्टर्स भी किया था मैंने इन कंप्यूटर साइंस फ्लोरिडा से। तो मेरा काफ़ी वेरिड किस्म का एक्सपीरियंस रहा है, मेनली इन टेक, लेकिन थोड़ा बहुत टेक के आसपास डिफरेंट चीज़ों में भी काम किया, लेकिन ज़्यादातर टेक साइड पर मेरा, क्योंकि अपना इंटरेस्ट और बैकग्राउंड उसी में था। तो although I have dabbled in other things, I somehow found myself again somehow related to tech. लेकिन खैर tech is not the be all end all of the world, लेकिन आजकल तकरीबन हर फील्ड के अंदर you should at least have some sort of a technology mindset कि आप किस तरह से टेक को यूज करके किसी भी इंडस्ट्री में है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सेट्रा। So that's a little bit about me. मैं जो मॉक इंटरव्यूज हैं उसके अंदर भी आई कैन कंट्रीब्यूट along with हसीब एंड अल्तमश, लेकिन आई कैन गिव यू सम just general tips as well from my own experience कि मैंने कितने सारे इंटरव्यूज फेल किए हैं और किस किस तरह फेल किए हैं, so that you can learn from that and not repeat the same mistakes. So that's me. Haseeb. Hi, Assalamualaikum जी। I hope आपको ठीक होगा। मेरा नाम हसीब है, and same like Fahad and Altamash, I graduated in 2003. It was batch 9 in CS. So I think in my case, मेरा experience काफी consistent रहा है, in a sense that I always work in tech. So I did my masters from Koteho, then I did my LIS, which is the licensure or MPhil, from EPFL, and then just continued working in the industry. So it was, of course, initially it was all about being a software developer, then becoming a solution architect, and now I'm working primarily in the tech sales. But from this experience of working at 8-9 different companies and also being part of different interview committees, etc. So I have learned that in terms of do's and don'ts of interview, it's all about your mindset, right? It's all about how you end up communicating or how you end up selling yourself. So like Fahad said, like Altamash said, so what we intend to do today is that we will give our insight as to how you should prepare for your interviews. Of course, we cannot judge you on your technical capabilities, but we can, of course, give you some feedback, how you can improve your soft skills, what things you should avoid, what things you should do, and so on. So I think that's it from my side. Okay, I think Zikria, are you ready? I think we'll first start with you if you're ready. Yeah, definitely. Okay. So we'll start with the first mock interview, which is of Mohammad Zikria. So hand over to you guys. Right. So I think the first and foremost question would be, Zikria, can you introduce yourself? How would you, end up presenting yourself to, let's say, some interviewers? Zikria, you're on mute. Sorry for that. I'll start off with introducing myself as hi, my name is Mohammad Zikria. I'm from Ghulam Isa Khan Institute, doing my engineering sciences in my final semester. This degree is basically a combo of all the three mechanical, electrical, computer science combined. Other than that, I have been representing CBS as the president and operations manager as the for Team Hammerhead. This team is basically representing Pakistan internationally in Shelly for Marathon. So why did you choose this area?
Well, basically, I've been working in this particular field for the past few years. The internships that I've had are all centered around this particular zone. I'll take management as an example over here, since I've been working in management side a lot, and it is something that I feel is related to my personality and how I function in this particular zone. Right. So you talked about management, right? So how do you define status quo? How do you define status quo? Yeah. So basically, status quo, in my opinion, is how you perceive things, right? How the world thinks about a particular aspect of a particular topic. I think, for example, status quo is something that has been a trend that has been set forth that is defining each and everything around it. So I might not able to answer it very to the point, but this is to the best of my knowledge. Okay, so I think let's do like this. So let's take an example. Okay, so you must have had some situations in which you had voiced an unpopular opinion, right? So it means that you challenged the status quo. So can you give an example? I mean, what happened in those circumstances? How your unpopular opinion was taken by your team at your university, etc. How did you approach that entire situation? Well, I'll start off with one example. Being in CBS, we started off with a project that was known as the vending machine project. Since it's very costly and admin does not like to talk about money when it comes to giving it back to the institute for the development purposes, for the benefit of the students. So what we did was basically we voiced our concerns that I'll take one particular example of female sanitary products. So instead of going to the tuck and dealing with those male staffs, and so to save them from that particular thing, although we're not undermining the credibility of our institute. So what we want is basically to facilitate these students, these female students inside the institute, by providing them with a vending machine inside their hostel, so that they don't have to come out and need to deal with it. Since it's basically a big taboo around this particular region in which we live in. Awesome. So second, something like one quick feedback. So when you get a question like this, right? So again, the idea or the main purpose of this question is that the company wants to assess whether you can challenge status quo or not, right? And they will always do a follow-up question. So let me ask you that question. So, for example, I mean, you are working in a team, right? And of course, I mean, different team members have different work styles. And what if, I mean, someone's work style or your team's work style conflicts your own work style, right? And you believe that will end up slowing the completion of the project, right? So the question would be, how would you address, I mean, or how do you resolve this sort of a situation? Well, I'll start off with assessing myself. Basically, I'll see if I am doing it wrong, or are they doing it wrong? Because I might be the odd one out. So I'll start off with assessing myself from their point of view. If that is not if that is correct, then I'll see to it what particular area that we're lacking in and what particular area that we need to improve on. So my approach would be to talk to them and try to resolve it. If, for example, the issue does not resolve, so I'll have to try to ask them to either give up the position, or try to address the issue, try to address their support to another particular to another project in which they might be better suited. So I think that is how I'll deal with it. Right. Okay. So second, sir, I will ask you one more question, which is aligned to this question, and then I will give my feedback. So okay. So consider one more scenario that your boss, your manager, assigns you a project. Right. It has a deadline a month away or so. Right. And a week before the deadline, your boss tells you that to hand over the project to some other coworker. Right.
and he assigns you to a different project. So how will you react? How will you manage this sort of a change? Well, I'll see if, in the very start that was I not capable enough of completing the project, or that person is better than me. If it is for the sake of the company, right, and that person can handle it much better than I have, that I have been handling it. So I think that won't be an issue handing it over to that particular person, because we are all working for the sake of the company and trying to give them the maximum push that we can give. So if I was reassigned, that won't be that big of an issue. Right. Okay. So I can now I'm going to move to like my feedback. So the purpose of these questions is that first of all, I mean, the company wants to assess whether you can effectively challenge a status quo, right? Do you care about the team, right? Or are you willing to do the right thing? So meaning that, I mean, okay, you are willing to let go of your project a week before the deadline to some other team member, right? And I mean, so there's like one mistake which I see in your answers is that these questions are quite ambiguous, right? So you should always ask some counter questions in the beginning, right? So let's say if you take the example of my last question. So you should ask interviewer to further clarify this question by I don't know, by asking, why am I being, I mean, so why is my boss moving me to a different project? Is it because the project is being delayed, right? Is it because I know I'm not getting along with my team members, and so on and so forth? So I mean, there can be lots of other questions which you can ask first before assessing the situation. So assess the situation first before you create this answer. And whenever you create your answer, think about the fact that you have to do the right thing, right? Whether you believe that thing or not, right? So if voicing your opinion, again, I mean, this this is probably a very debatable topic, but it also depends upon the culture of the company. But if you believe that something might be unpopular, but that's the right thing to do, you should definitely voice that opinion, right? But before you do that, as I said, ask those questions. Make sure that you can have a certain level of clarity. Because I mean, so what you did in this case was that you took those very ambiguous questions, right? And then you gave a very ambiguous answers, right? So situation wasn't presented to you clearly, and you did not help your cause as well. So ask questions to clarify the situation, and I think in that way, you'll be able to answer those questions in a much better way. So that's my feedback. I know, Fahad, Altamash, what's your opinion? I think obviously this is a mock interview situation. In a real interview, I would also ये जो last point है खास तौर पे questions का, not just clarifying questions. Sometimes interviewers will give you more information, sometimes they won't, which is fine. Like, and it doesn't hurt to ask clarifying questions. और फिर ये कि in general, ये तो एक mock interview है, but in real interviews you should always have some interesting questions to ask the interviewers as well. कि towards the end of the interview, अक्सर interviews में होता है कि भाई, okay, do you have any questions for us? तो खैर ये तो एक general मतलब not on your interview feedback, लेकिन क्योंकि questions की बात हो रही थी. दूसरा ये कि I think in general I see that you are generally confident, generally reflective, generally trying to think about situations. लेकिन interviews में अक्सर ये होता है कि when the interviewer asks the question, you have to kind of peel the onion a little bit, जिस तरह अभी हसीब कह रहा था. तो try to see कि वो why they might be asking these sort of questions. उसमें अब जैसे ये जो last question है, इसके completely दूसरी side लो. Maybe you are so competent that you are really needed on a much more important project, and this one really isn't that important. लेकिन ये aspect immediately जहन में नहीं आता. It may be कि कोई छोटा सा $1 million project से उठा के तुम्हें $100 million के project पे लगाना चाह रहे हैं, because that one is really critical. तो उस case में is actually a good thing. So इस तरह के कुछ situations हो सकती हैं where you don't really see कि एक immediate reaction होता है, भाई मुझे क्यों उठा रहे हैं, इस तरह है मैं I want to take the credit or whatever, but maybe you already got it, and maybe इस तरह की situation है.
तो खैर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो दोबारा शायद ना हो, लेकिन इन एनी क्वेश्चन उसकी अगर एक अपेरेंटली नेगेटिव चीज है तो उसकी हो सकता है कि कोई पॉजिटिव साइड भी हो which you might be able to uncover. Also, like one other supplemental point. So, I mean, of course, I mean, you should ask questions, but do not ask questions which have an obvious answer, right? Because if you start doing so, I mean, again, this remark is not for these questions, but in general. So, I mean, it's always encouraged that you ask questions, right, from your interviewer. But if you start asking them questions which are too obvious, that would end up telling them that you haven't done any research. You haven't done any preparation for your interview, and that can again be something on the bad side. So I mean, so for like these lines of questions. So I mean, I use this very soft checklist, right? So I say, okay, I have these five points. So whenever I'm asked like these sort of these questions, so I say, okay, I have to do the right thing, right? So your answer should reflect that you are willing to do the right thing, whether that thing might be against your own objectives. That's number one. Second one is that you should challenge the status quo, right? So if something you strongly believe is wrong, you should not shy. You should be open to challenge that thing. Again, I mean, it has to be done in a very nice way. The third thing, which also like Fahd pointed out, that there are always different perspectives, right? So when I am going to answer these questions, I will try to understand. And again, if it's not clear from the question from the interviewer, I will ask them to clarify their perspective before I give them my perspective, right? The fourth point, which I normally use, is that you should show, or you should in fact, truly be. You should be someone who cares for the team, right? Cares for the project, cares for the greater goal, and not your own personal agendas, right? And you should always like put your work first. Or like put your stakeholders first. So I will like use like this sort of a soft checklist before I create any answer, or if I answer to these very vague questions. And then again, the idea of these questions is just to assess a part of your personality, right? Whether you can work in an ambiguous environment, whether you can work in an environment where there might be conflicts, and there will always be conflicts. So yeah, Altamash. Conflict management का हर interview में होता है. Yeah, it's inevitable. Yes, I'll do one thing. हाँ, sorry, बताओ. मैं सोच रहा था कि we do the interviews, और फिर there's a whole list of other general ideas as well. Yes. और फिर end में हम questions के लिए भी time रखना चाह रहे हैं. Okay. दो मेरे पास सवाल थे actually, थोड़े curve ball questions जो लोग पूछते हैं. तो I understand it's that there are a lot of people here. So अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा sorry Zikriya, you can select the question answer a little bit. एक सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये होगा कि as an interviewer I'd ask you कि what is your biggest failure and why do you think that's your biggest failure? आपकी आवाज नहीं आ रही थी. Am I audible now? Yeah. So I said that was a very difficult question to ask. खास तौर पे इतने बड़े इंटरव्यू पैनल में it's इसलिए मैंने कहा कि you can choose an arbitrary failure that you but it doesn't have to be your own. You can just make something up. Yes, exactly. So my biggest failure would be when I joined the society as from the executive council. I could not manage to hold on to one of my key members of the executive council. It was there were some differences between him and me, and that is what I believe would be my biggest failure so far, losing him. Right. So so one thing I will do. So if I were in your shoes, so I will first of all ask. Are you asking about my biggest failure or my best failure? Because there is a difference between those two, right? So okay, so you fail in something, but you end up learning something invaluable, right? So that's not really a failure. Of course, you failed in that situation, yes. But if you learn from those mistakes and you don't do those things, because everyone will do the mistakes anyways, right? So that's your best failure. So your biggest failure is where you feel yourself
that you failed yourself and you did not learn, or that thing was unavoidable, and if you are put in the same situation today, you will fail again, right? So again, clarify, or at least when you try to answer. So like in your answer, okay, you said, okay, that was your biggest failure. But what we didn't get was that, what did you learn from that failure, right? I mean, so that's the purpose of the person, that we want to learn, we want to see whether you learn something from that or not. Because I mean, all of us have failed, right? So all of us fail in something. I think the most important bit here is that, that other than my very first interview in my life, every interview I've had this question asked of me. And interview के बाद आप यही सोच रहे होते हैं कि यार मैंने ये क्यों कह दिया, मुझे ये वाली चीज मुझे बतानी चाहिए, वाली चीज बतानी चाहिए. But the point is, as Haseeb mentioned, every time this question is asked, interviewer जो है उसको पता है कि कोई भी जवाब आ सकता है, and literally there's like 1,000 different answers that come up on this. But what they really want to understand is कि are you someone who fails and then gives up, or are you someone who learns from it, and अगली दफा आपकी जब आगे की जिंदगी होगी उसमें आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे. तो एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि what you consider failure and what did you do afterwards. तो ये दो चीजें are what interviews are looking at. हाँ, उसमें I think वो you described a failure and then stop. वो कभी भी नहीं करना चाहिए. Exactly. Got it. Exactly. And I mean, इस क्वेश्चन के काफी सारे मतलब let's say variants हैं, so they can always ask you, what's your biggest regret in life, right? Or what was your saddest moment in your life, and so on. So again, I mean, the purpose is the same, right? We all go through the same things. We all fail. We all get sad. We all have incidents in our life which we want to forget. But the purpose is, we want to understand from your perspective whether you learned something from that or not, right? So if you can reflect upon yourself, if you show that you have learned that XYZ thing, yeah, and I mean, like Fal said, that you should not stop by saying that this was your XYZ failure, but you should say, okay, this is what I learned from that mistake, and then there was some other. I mean, the best situation is that you say, okay, I failed in XYZ, I learned ABC, right, and then I was in a very similar position, in a very similar scenario, where I used that learning and I did not fail. So like do it that way. Yes. It's also possible that you haven't had a chance कि जहाँ पर आपने अपनी learnings implement की हो, लेकिन understanding ये होनी चाहिए that you should give the interviewer कि I have learned a lesson from this, and आइंदा कभी ऐसा हुआ तो मैं I will not let it happen. So that's the idea that interviewers are looking for. Because देखें, जो भी कोई interview लेने के लिए आएगा आपसे, वो आदमी अपने आधा पौना घंटा 1 घंटा निकाल के इसलिए हरगिज़ नहीं आ रहा होगा कि उसको टाइम ज़ाया करना है. वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उसके specific questions होंगे, उसके in his mind each one of them has a meaning, and your answer will help him identify कि जो उसके जो 80 लोग जो उसके पास आए हैं इंटरव्यूज के लिए, उनमें से किसका चुनाव करे, राइट? सो हिज सिलेक्शन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एंड योर जॉब इज टू मेक हिज डिफिकल्टी इजी बाय मेकिंग श्योर दैट ही रिमेंबर्स यू एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू. यार ये जो था ना, इसने हर सवाल का अच्छा जवाब दिया था, बड़ा इंटेलिजेंट है और काम भी आता है उसे, और वो समझता भी है अपने आप को. इवेंचुअली फिर वो डू बेटर at work. एक और difficult question. Again, as Fahad mentioned earlier, you don't have to give the right answer. You can just make something up right now for the purpose of the interview. ये भी बहुत पसंद से सवाल पूछा जाता है. Like, आप अपनी कोई एक या दो जो top weaknesses हैं वो बताएं हमें कि क्या हैं. Okay, so I would love to ask a follow-up question, but I don't have one right now. So I'll just start off with what I have in mind right now. It's like having this personality that I cannot say no to people. This actually burdens me with their work as well, to the point that I have to put in the extra effort, sacrifice my own time just to deliver on those particular promises. And this, though I'm not very proud, I'm not very happy with it, but it's something that has been there, and I would love to change. But this does not affect my deadlines in any way whatsoever. I like to keep those things separate from what I have to deliver. And other is that I sometimes, when I'm actually nervous, I have to speak. I speak very quickly, and that is like people don't understand me at all.
तो जिक्रिया आपका पहला वाला जो था ना, that has been my answer to every time somebody asks me this question. So I honestly don't know the right answer, so I think Fahad and Hasib can guide a bit more on so this. मेरी मतलब थोड़ी सी फीडबैक ये होगी कि so again, I mean, I might be right, I might be wrong, I'm not sure, but this answer should be, so I mean, so I don't know, tweak the answer in a way that your weaknesses become your strengths for this particular job or the company, right? So for example, okay, if I'm applying for, let's say, a backend, I mean, this is just an example. Maybe it's not a great example, but I'm applying for a job, applying for a role, which requires me to solve very complex problems, right? Now, if your answer is that, okay, that I get stuck or I'm obsessed with solving a problem, right? And you're saying that that's a weakness, but that's a strength for this specific role, right? So again, I mean, a bit of research about the role, right? And then, yeah, I mean, sort of like, I don't know, tweaking your answer. It's not really lying, but sort of tweaking your answers, to sort of tweaking your weaknesses, which are essentially strength for this role. So I would probably do it that way. और ये जो तुमने जवाब दिया है, this might be a strength for a customer facing kind of role कि भाई when you're facing a customer you should be kind of like customers को जो है ना, you generally you should be saying yes. Now कभी कभार ये होता है कि yes but and then you handle the situation later लेकिन आपको customers को no सीधा नो नहीं करना चाहिए. सो दिस सॉर्ट ऑफ आंसर कुड बी अ स्ट्रेंथ एज वेल. तो ये उस तरह से एक अच्छा आंसर हो सकता है इस तरह के रोल में. दूसरी एक और चीज, इस सवाल का अक्सर एक फॉलो अप होता है कि अच्छा ठीक है, सो यू हैव आइडेंटिफाइड कि दिस कैन बी अ वीकनेस इन सर्टेन सिचुएशंस. तो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू एड्रेस दिस एंड मेक श्योर दैट दिस डज नॉट बिकम अ प्रॉब्लम. तो मतलब यू डोंट हैव टू आंसर इट राइट नाउ, लेकिन जो भी आप इसका आंसर देना है इस सवाल का, तो ये एक अक्सर एक फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है. नाउ यू माइट एंटिसिपेट दिस फॉलो अप क्वेश्चन एंड एक्चुअली प्रोवाइड द आंसर एज पार्ट ऑफ इट, लेकिन देर बेसिकली लुकिंग एट कि भाई आप अपने बारे में किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं और अपने एक तरीके आइडेंटिफाई कर सकें, और फिर ये कि कुछ असेसमेंट हो कि अच्छा ठीक है, हाउ डू यू नॉट लेट दिस बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. Okay. So I mean, there's like also like one more question. Again, I mean, there's a purpose for this question. So I'm just going to ask the question, and we can just probably spend a minute on that. So describe, I don't know, what in your point of view is a best assignment for you that can best utilize your skills? How would you answer that question? So I love to ask a question in regards to this. Sure. What kind of what particular aspect of my personality are you talking about? So I mean, so what we are looking for is your strategic understanding of different, let's say, business issues, the way you solve, or how you, let's say, what exactly is your methodology to solve a problem? Your skills regarding I don't know, like outcome driven skills and so on. So essentially, I mean, so we are solving a very complex problem, right? And we have different phases of a solution or so. And what we want to know that in which aspect of a problem solving or a solution design are you most, or you consider yourself most suitable for? Okay, so I'll make a hypothetical situation over here. I'll make a hypothetical situation over here. Suppose I'm going for a particular computer science related job, right? Or a management related job, and this particular project requires an app development that must be launched within this year or so. So I think I'll be best suited in the strategy development department, because in that particular department you have to oversee different aspects of that particular app. What would be the outcome? Thinking about how the customers would react to it, and distributing and delegating your team according to the needs of the apps is something that I like to do, and that is how I would like to start off in this particular position, trying to find the best possible ways to implement this app.
Right. So now, so like one feedback over here. Okay, first of all, I mean, you asked a question which was excellent, and honestly, I wasn't really prepared for a question. So, um, so generally, I mean, when you ask this question, there will be a follow-up question, and I mean, since the answer was that you are more keen into a strategic sort of a role, or you want to be part of that strategic process, so they will most likely ask you that give us a situation where you did some analysis, you make a strategic choice, and that failed, right? Again, I mean, we have asked this question before as well. So, so I mean, what would you do in that situation, or what would you have done in that situation? So I'll quote a different project over here now, since we're like talking hypothetically. So let's say, give me a minute on this one because I have to think about like just to come up with an answer. I think I'll quote the vending machine project in the first place. It was a failure since in the very start when we started it back in 2017 when I joined the institute, and I was in the core team that was responsible for coming up with a solution to how to fund it and how to place it inside the campus. What we did was we were trying to solve the problem head on. We were trying to ask the investors directly for money, not realizing what benefits that they would be asking for it in return, asking the administration to help us out directly, which was not a very wise thing to do in the first place. So it resulted in a 4-year delay. And now when me and my batch are in the executive council, we try to resolve those issues by leading a different approach, trying to find a cause as to why we are putting up these vending machines, and then trying to navigate our way in such a manner that we're not asking a very huge amount from a single person. We're trying to distribute the funding. This would help us. This not only help us in resolving the funding issues, but also manage to convince the administration as well in trying to support us in this particular project. Acha, it's been 40 minutes. Kya ख्याल है कि should we give Zikria, right? Round of applause. So thank you so much, Zakaria. I mean, I know that at times आपको लगता है कि बहुत difficult or unnecessary conversation थी, but thank you so much. The only thing is कि आप जब real life में जाएंगे तो आप इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे. So it's best to have it now, ताकि आपने सब सोचा हुआ हो कि ये आएगा और ये जवाब देना है, rather than it completely comes out as a curveball. Sorry for saying something. एक चीज I would like to appreciate कि इतने बड़े group के अंदर ये इस position में आना, this itself is a valuable asset, because you are willing to put yourself out there. You're willing to take these kind of जिसे कहते हैं social risks, जिसे कहते हैं, which not a lot of people do. So really appreciate. This is a good thing. Yeah. So should we do the next one? Next Sure. contact. Hunain, are you on the call? Just to confirm, he's not replying on WhatsApp, so I'm expecting he's not on the call. So we have another one, Huzaifa Yahya. Huzaifa, he was there a couple of minutes ago. We have Huzaifa Yahya. So hi Huzaifa, I'm afraid we weren't able to study your CV in a very detailed fashion. When you rock up to an interview, there are many occasions when this will actually happen to you guys that the person hasn't read through the profile, so he doesn't know. And then they will start with a generic question like, tell us about yourself. So I'll give you that chance. Why don't you tell us about yourself? I think Huzaifa भी call उसका मुझे message आया था. Yeah. No problem. So then what we'll do is yeah.
Sorry. If you want, you can interview me and critique me. But we've been doing that for 20 years already. नहीं, but attendees जितने भी हैं इनसे पूछ लेते हैं कोई वॉलंटियर करना चाहता है guys. Again, it's a good opportunity. तो अगर कोई भी JIK में नहीं है और उसका इंटरनेट स्टेबल है, because I think the feedback is JIK में और इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो हाँ, तो कोई भी वॉलंटियर अगर really good learning experience. Incoming video अगर ऑफ होती है तो you can do that ताकि bandwidth थोड़ी ऑडियो की बेहतर हो जाए. I think Huzaifa is there now. Huzaifa, yeah, we are looking for Huzaifa, yeah. दो और Huzaifa हैं, Huzaifa, yeah. Unfortunately, मेरा इतना uncommon नाम है कि I assume कि only one person in the world has a name, but you know, as Fahad would testify कि एक से ज़्यादा हो सकता है. नाम तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया में अल्तमश शाही खान सिर्फ एक ही एक पीस बना था. Fair enough. So if अच्छा, अगर अभी फिलहाल कोई इंटरव्यू हुई अगर नहीं है, I'm happy to go into like the general advice I have, या फिर I don't know how do you want to take it. ठीक है सर, आई थिंक इसी तरह कर लेते हैं. Yeah. अब जनरल फीडबैक में चले जाते हैं सिंस वी डोंट हैव एनी वॉलंटियर. सर मैं कर लेता हूँ वॉलंटियर सर, आप अलाउ करें सर, फ्लोर ओपन. श्योर. That's great. बिल्कुल अलाउ कर देते हैं. सर आपको अपना नाम बताना होगा पहले. सर मैं थोड़ा मतलब वीक हूँ इस इंटरव्यू क्वेश्चंस में आजकल, इसलिए मैंने थोड़ा आज ज्वाइन किया कि थोड़ा फीडबैक आपसे. बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं. सर मेरा नाम इब्राहिम मुर्तजा है. आई एम फ्रॉम बैच 2017 सर, फ्रॉम बैच 2017 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. तो इब्राहिम, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था फॉर इंटरव्यू, आई से द सेम थिंग कि इट्स नॉट नेसेसरी कि इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल पड़ी हो. तो इट्स पॉसिबल कि दे जस्ट कम अप, या ये है कि बहुत सारे इंटरव्यूज थे जिनमें उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो फिर वो इंटरव्यूअर एक जेनेरिक सवाल पूछेगा टू स्टार्ट यू ऑफ. तो मैं आपसे फिर ये पूछूंगा कि टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. हाँ, अब मेरी जो रूटीन है इस क्वेश्चंस की, तो मैं ये कहता हूँ कि माय नेम इज इब्राहिम मुर्तजा एंड आई एम फ्रॉम बैच 27. I am a final year student doing electrical engineering in my Ghulam Isa Khan Institute. I live in Multan and I have 3 brothers and 2 sisters, and that's all from my side. So अब इसका अब मुझे नहीं पता कि इसमें मैं और फर्दर क्या ऐड करूँ, एक्सप्लेन माय सेल्फ. अब मैं ये कह देता हूँ कि इंटरेस्ट के बारे में कुछ बता सकते हो? एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या कौन से कोर्सेज में यू वर मोर एंगेज्ड? वन थिंग, आई मीन देखिए, आपने मेंशन किया अपना बैच, ठीक है. आप इंटरव्यू के लिए आपका बैच इंपॉर्टेंट नहीं है. आई मीन आपने जहाँ पे कहा, मुझे नहीं आइडिया कि बैच 2017 जो भी है उसका मतलब क्या है, राइट. सो आई थिंक ये क्वेश्चन मतलब लेट्स से आप लेट्स याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा होना ही होना है, राइट. So is there a yes sir, आप बताएं. So जैसा मतलब फात ने कहा कि मतलब ठीक है, नेम ऑफ कोर्स इज गिवन, राइट. व्हाट यू हैव डन, आई मीन कि आप आई डोंट नो मतलब FEE में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट in few months or so on. This is what your interests are and this is what you're looking for. I mean, something very short, something very concise, which tells them that they should take interest in you, right? So I mean, like going to batch number or telling them about family, I think that's not relevant. That won't help. बिल्कुल. और the thing is कि इब्राहिम यहाँ पर ये होगा कि so sorry, अब मुझे लग रहा है आपकी आवाज मुझे नहीं आई सही. इब्राहिम सॉरी, यहाँ पर ये होगा कि आपने 1-2 मिनट का इंट्रो देना है, और आइडियली व्हाट विल हैपन इज कि देखें, आपसे पहले भी एक आदमी इंटरव्यू के लिए आया होगा, आपके बाद भी एक आएगा, और जो एम्प्लॉयर होगा उसको बहुत सारे सीवीज पहले उसको छानने होंगे, उसके बाद बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज होंगे. तो इसलिए हाउ डू यू स्टैंड आउट, किस तरह से उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको ये हो कि यार मैंने जो 70 जो इंटरव्यूज किए हैं उसमें से अगर मैं उसको शॉर्ट करके 15 तक लाऊं तो वो कौन से 15 लोग होंगे. तो उसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको याद रहें. तो उसमें
आपकी टेक्निकल स्किल्स आती हैं कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, आपका जीपीए अच्छा था, आपके प्रोजेक्ट बहुत मजेदार थे, उसमें आपकी थोड़ी सी और स्किल्स भी आती हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये जो 1-2 मिनट आपके होंगे, आइडियली 2 मिनट होने चाहिए, जो आपके 2 मिनट होंगे उस पर आपकी थोड़ी प्रोजेक्शन, एज फहद सेड एंड एज हसीब सेड, कि थोड़ी सी प्रोजेक्शन आप किस तरह से करेंगे, थोड़ा आप ये बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, थोड़ा आप ये बताएंगे कि अगर अगर कोई आपका बहुत ही कोई स्टार प्रोजेक्ट है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने अदर देन दिस इंटरेस्ट या कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक समरी देनी होती है इन दिस टाइम द इंटरव्यूअर काइंड ऑफ गेट्स गोइंग, एंड देन फिर वो आपसे एक एक करके स्पेसिफिक सवाल पूछना शुरू करेगा। एक और चीज मैं, सॉरी आप कुछ कहना नहीं, चाहते हैं? आप बताएं, मैं अच्छा जी बोल रहा। अच्छा, मैं एक इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये मैं ऐड कर दूं कि इंटरव्यूअर्स जो है ना, वो भी आगे से इंसान बैठे हुए होते हैं विद ऑल ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड वीकनेस फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स एज वेल। तो कभी कभार ये होता है कि मैंने देखा है अक्सर इंटरव्यूज में कुछ लोग जो है ना, अगर उनकी कोई बहुत कोई इंटरेस्टिंग सी या यूनिक सी कोई उनकी इंटरेस्ट हो या हॉबी हो, वो भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो आया कि भी मुझे आर्चरी का बड़ा शौक है। अब आर्चरी इज नॉट वेरी यूनिक, नॉट वेरी कॉमन, सॉरी, इट इज वेरी यूनिक। और अगर उसके अंदर कोई आपने फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप, जरूरी नहीं आर्चरी हो, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया हुआ है या कोई इंटरेस्टिंग अचीवमेंट है या कोई कोई ड्रामेटिक्स में कोई काम किया हुआ है, कोई ड्रामे लिखे हुए हैं या ड्रामे किए हुए हैं या वट एवर ड्रामे तो फिर हर कोई करता है, लेकिन इट कुड बी एनीथिंग दैट इज, जिसे कहते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट की अगर कोई कहानी हो ना, बिकॉज पीपल आर सकर्स फॉर स्टोरीज, इसी वजह से इतने ड्रामे जो है ना इतने मशहूर होते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि दैट शुड बी ऑल ऑफ योर इंट्रो, लेकिन अगर कोई एंकर डालना है ना इंटरव्यूअर के जहन में कि भी आपने अपना बताया कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है प्रोफेशनली, और फिर मे भी आखिर में एक छोटा मोटा टीजर अगर आपने छोड़ना है, तो यू कैन पुट इन सम सॉर्ट ऑफ, अगर अगर कोई यूनिक इंटरेस्ट है तो वो बीच में डाल दें। कि हो सकता है कि दिन में 10 इंटरव्यूज करने के बाद जो इंटरव्यूअर जो आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो रेफर करेंगे हाँ वो जो आर्चरी वाला था ना उसके बारे में इस तरह से। Also to add, so when I was part of this process, so even like lately as well, so मैंने ये चीज डाली हुई थी कि मैं कहता था कि I'm an amateur squash player, right? So I mean that word amateur was a bit of an icebreaker always, right? So they were asking, okay, squash क्या है, ठीक है? What exactly do you mean by amateur? So I mean again like something which just clicks, something very simple. हाँ, खैर एनीवे ये बस आई नो कि ये हमने बस वैसे ही एक इंटरव्यू क्वेश्चन कर लिया, बट फॉर एवरीबॉडी ऑन द कॉल एज वेल इस तरह की चीज कोई हो सकती है। So Ibrahim, so what is your dream job? What do you want to do with life? My dream job, sir, I want to do something related to my field, sir, electrical engineering. के मुझे इसमें ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि यही मैंने फील्ड चूज की थी कि आगे मतलब जिस तरह आप पता ना आपको कि ये लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, ये मदरबोर्ड बन रहे हैं, इतनी मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इस पे काम करने का मुझे काफी मतलब शौक है। Right. So again, so I think ये feedback last interview में था कि so अगर आप XYZ कंपनी के इंटरव्यू जा रहे हैं, so try to make an answer, try to articulate this answer which coincides or which aligns with that company's objective, right? Let's say I don't know, let's say for example वो company I don't know, let's say मतलब वो motherboards पे काम कर रही है, then this answer is perfect, right? So I mean you shouldn't have one answer which fits all companies. So that's my, again, I mean this can be debatable because then you are not being true to yourself, but for an interview's sake sometimes you have to play like this. एक और भी मेरे इसके अंदर ये है कि समटाइम्स ये होता है कि इट हेल्प्स टू टेक अ स्टेप बैक, और जिस तरह आपने कहा ना कि फील्ड चूज की है और उसके अंदर कुछ करना चाहते हो विच इज ग्रेट, लेकिन उसका अगर थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड हो ना कि अच्छा व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड, ये क्या कोई मतलब कि हाँ भाई ठीक है बस दुनिया में पॉपुलर है इस वजह से चूज कर ली, या उससे पीछे भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लेट्स से कि भाई
अब मैं फॉर एग्जांपल अपने बारे में अगर देखूं तो मैं ये देखता हूँ कि भाई मैं दुनिया के जिस हिस्से में पैदा हुआ और आज मैं जिधर हूँ वो इस वजह से है बिकॉज टेक्नोलॉजी ने काइंड ऑफ दुनिया को चेंज कर दिया है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बना दी हैं। आज से 100 साल पहले अगर मैं होता, आई डोंट नो व्हाट आई वुड बी डूइंग। मैं तो कहीं कहीं आई डोंट नो सीरियसली व्हाट आई वुड बी डूइंग। लेकिन अब दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो गई हैं मेरे जैसे लोगों के लिए कि we can find value in optimizing things, in solving problems जो कि पहले आज से 50 साल पहले 100 साल पहले शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो रोल्स ही वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो वैल्यू ऐड करने के बहुत सारे तरीके बहुत सारे लोगों के लिए ओपन हो गए। और इस सारी चीज के अंदर अगर मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल डाल सकूं इन सम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो वो एक पर्सनल आप उसका कनेक्शन बना रहे होते हैं। तो you can kind of try to give your own experience which shows कि भी आपका कोई पैशन की कोई कोई पर्सनल कोई सोर्स है या कोई पर्सनल कोई इंटरनल कोई आपकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही है। तो इब्राहिम, इसके बाद एक और I'm sorry, मैं मशहूर हो जाऊंगा कि मैं टेढ़े सवाल पूछता हूँ, लेकिन एक मैं थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछूंगा आपसे। पहले से ही मशहूर हो तुम। अनफॉर्चुनेटली। तो इब्राहिम, अगला सवाल ये होगा कि अब अज्यूम करें कि मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ और आप एक किसी ऑफिस में मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आज मैं 3 दिन से लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं 70 लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ। What is special about you, या what do you think will make you the person कि जिसको मैं ये जॉब दूँ बनस्बत those other 70 people? अब अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक इंजीनियरिंग कंपनी में हैं, and as you said कि your favorite is the hardware that you talked about, as हसीब said कि मतलब वो कंपनी में वही हार्डवेयर होता है और वही चीज़ें। तो अब उन 70 लोगों में मैं आपको क्यों चूज करूँ? अब आप इस चीज़ का मुझे जवाब दें। Why should I choose you amongst those 70 people? हाँ, मुश्किल सवाल किया है। सर दैट वाज वन, ये क्वेश्चन मैंने अब आपसे पूछना था सर, अगर मेरी बारी आती सर आप। सर ये वन ऑफ द क्वेश्चंस ये है कि इसमें मुझे थोड़ा इश्यू होता है कि व्हाई यू एंड व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। तो आज तक मतलब मैंने अपनी रिसर्च की है, कहते हैं कि उसमें अब ये है कि आप अपनी रीजंस बताएं कि आप मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे और नेक्स्ट के नॉट ओनली आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ बट आई विल, इसको एलेबोरेट मतलब अभी तो मैं आपको समरी बता रहा हूँ सर। तो नहीं, बट अज्यूम करें कि आपके पास ये लग्जरी नहीं और आप एक्चुअली बैठे हुए इंटरव्यू में, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट वुड योर आंसर बी? एंड देन ऑफ कोर्स देखिए, ये तो सेशन ही इसलिए कि आपका आंसर लेके फिर उसमें हम बताएंगे कि उसमें फर्दर क्या क्या ऐड किया जा सकता है। I will bring a positive attitude to the company. So and the next thing is I will not only work for myself, I will also work for the betterment of the company. I will utilize my skill for the and also keeping my different goals in my mind, that if I do the work for the company, I can also achieve my dreams, and I also want to get a great history behind me. And the third is teamwork. That I will not only work for myself, I will work with the team. I will also collaborate with the team, and I will have, because we all have one goal. We are all working towards the single goal, and that's it, sir. That's it. लेकिन इसमें इब्राहिम, there's no right answers, and honestly in interviews there's no right answers. इसमें एक जो चीज है कि what I liked is कि आपने पहले बात किया था कि आप टेक्निकल साइड पे इंटरेस्टेड हैं in the hardware, in the hardcore engineering, technology engineering, electronics related work, right? And you mentioned that again over here कि मैं वो यूज करूंगा। तो देखिए, एक तो ये होता है कि इंटरव्यू तो होता ही, लेकिन इट्स अ कन्वर्सेशन दैट्स गोइंग ऑन। जब आप आके बैठेंगे मेरे सामने और पहले 1 मिनट में आपको नहीं जानता, फिर आपने बताया कि अच्छा मैं इंजीनियर हूँ, मैं मुल्तान से हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड था, मैं एज समबडी सेड एमेच्योर आर्चर हूँ। तो उसके बाद फिर एक थोड़ी सी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। फिर उसके बाद और बातें होंगी कि अच्छा आपने क्या पढ़ा है, आप थोड़ा डिटेल बताएंगे। फिर मैं पूछूंगा कि भाई क्यों आप ये व्हाई डू यू वांट टू वर्क ओवर हियर। फिर एज हसीब मेंशन्ड, बिकॉज आपने उस इंटरव्यू में जाने से पहले उसको थोड़ा सा टाइम दिया होगा कि कंपनी क्या है, क्या करती है, किससे मेरा इंटरव्यू है। तो फिर आप बताएंगे कि मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे लेट्स से माइक्रोचिप्स पे काम करना है और आपकी कंपनी वाहिद है जो सबसे अच्छा काम करती है। तो फिर उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा तो मैं आपको क्यों चूज करूँ, तो फिर आप मुझे ये पता होगा कि
you are an engineer by background and then you are interested in doing this type of work and आपसे probably weaknesses वाला सवाल भी होगा कि तुम्हारी weaknesses हैं. So at this point जब ये सवाल होता है कि why you, तो at that time आपकी थोड़ी बहुत conversation हो चुकी होगी, तो उन चीज़ों को भी लेवरेज करें, उनको भी यूज़ करें जो आप बता चुके हैं. भाई मैं टेक्निकल चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आप इस बारे में बात करें, मेरा इंटरेस्ट है, मैं मतलब ये ना इट विल कम फ्रॉम द हार्ट, द वर्क विल कम फ्रॉम द हार्ट. फिर आप ये भी बात करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट होने के साथ साथ मेरी एक्सपर्टीज भी मैंने डेवलप की है, मैंने पढ़ा है इसमें, मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी भी है. सो वो भी मतलब यू नो दैट्स पर्टिकुलर हार्डकोर वर्क स्किल्स की आपने बात की. फिर उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल एज यू सेड, वेल सेड बाय द वे, कि you know you will be a team worker because everyone works in teams, right? कोई अकेले काम नहीं करता, so you work in teams, so you will be a team worker, plus you will have a positive attitude. So ये चीजें हैं. There's no right answer. There's always pick up from the conversation you have had. The way I mean I look at this question, let's say मुझसे क्वेश्चन पूछता है, so the first thing I guess, I mean मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर जाऊंगा कि इंटरव्यूअर कौन है, ठीक है, and that will also help me understand कि वो क्या चीज देख रहा होगा, right? So for example, देखिए अगर let's say भाई आपका इंटरव्यू है किसी मैनेजर के साथ, right? So think yourself कि उसे क्या चीज चाहिए आप में, right? I mean, is he looking for, I mean, someone who can solve problems, or he's looking for more like a team player? Again, I mean, it's not an exclusive list, right? So अगर लेट्स से मतलब फॉर एग्जांपल वो आपने जिससे इंटरव्यू है वो एक पीपल मैनेजर है, ठीक है, तो उसमें मतलब आपने मतलब बताना कि इसलिए आपका मतलब विजन क्या है, आपकी क्या ये डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं होंगी. अगर लेट्स से मतलब कोई मैनेजर है तो आपने एज ए टीम कैसे काम करना है. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो लीड बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपने बताना है कि ठीक है यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, आप प्रॉब्लम को समझते हो, क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, एंड सो ऑन. So I think, yes, I think again, I think we have talked about this thing a number of times. I think preparation is the key, right? Preparation, research around the role, research around the company, and research around that interviewer. I think आप अपने इन तमाम जो मतलब टिपिकल क्वेश्चंस हैं इनके बहुत अच्छे आंसर्स मतलब होंगे आपके पास वो सारा नॉलेज है, ठीक है. और मतलब आप ऐसा देखेंगे अगर आप वहाँ बैठे होते उस रोल में तो आप क्या चीज देखते, ठीक है. अगर देखें अगर से मतलब मैं बैठा हूँ इंटरव्यू में, मुझे कहता है कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है. अगेन दिस इज नॉट एन आंसर विच विल आई मीन ये हार्ड वर्किंग वाला आंसर है ये हर किसी के पास होगा, ठीक है. बट आई वुड लाइक टू हैव समथिंग मोर देन दैट, राइट? आई वुड लाइक यू टू शो मी कि यस तुम्हें मतलब आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या चीज देख रहा हूँ. आई मीन इफ यू कैन रीच एट दैट लेवल बाय डूइंग अ बिट ऑफ रिसर्च, दैट वुड बी एक्सीलेंट. इसमें अगर मैं थोड़ी सी चीज ऐड कर लूं, वो ये कि ये जो सारी क्वालिटीज, जो पर्सनल क्वालिटीज है ना, ये कभी भी एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करनी चाहिए कि भाई आई विल ब्रिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, या आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड, या ये चीजें इस तरह, अगर कोई इस तरह से एक्सप्लिसिटली बता रहा है ना, तो दे प्रोबेबली डोंट हैव इट, क्योंकि उन्होंने वो कन्वे करना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली. ये ऐसी चीजें जो कि इम्प्लाइड होती हैं इन ऑल ऑफ द इंटरव्यू, in all of your answers, in all of your history. और वैसे मैं first of all I do apologize कि मैं वो ये एक मुश्किल सवाल था, आपने उसका जवाब दिया impromptu और फिर मैं उसके ऊपर इस तरह से नहीं सर ऐसी बात नहीं सर, ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट आई नीडेड दैट सर. हाँ नहीं ये एक्चुअली मैं ओके लेट मी फर्स्ट से कि भाई ये गलतियां मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है. खास तौर पे इन द बिगिनिंग, जब पहले कुछ इंटरव्यूज शुरू में, मैं करियर के शुरू में जब देता था, तो मुझे नहीं समझ आती थी मैं किस तरह बताऊं दैट आई हैव अ पैशन फॉर समथिंग, मैं किस तरह बताऊं मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं एक्सप्लिसिटली स्टेट कर दूंगा. लेकिन वही बात है कि आपकी जो इस तरह का जो सवाल होता है ना, दे आर ट्राइंग टू सी कि आपका इंटरनल कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी बनती है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स या ओवर एन एंटायर करियर which is leading you kind of naturally to this next stage.
देखें बहुत सारी चीजें अभी इंटरव्यू इस कॉल पे बहुत सारे लोग आई एम श्योर हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर वेरियस थिंग्स। एक चीज जो कि ऑब्वियसली वी आर ऑल लुकिंग फॉर मनी एंड टू प्रोवाइड फॉर आवर फैमिलीज एंड टू लिव अ गुड लाइफ। लेकिन अगर इंटरव्यू में कोई पूछे ना कि भाई आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये हर कोई ये जवाब दे सकता है। दे आर लुकिंग फॉर वही कि समथिंग डिफरेंट, समथिंग व्हिच हैज अ नेचुरल स्टोरी। बाकी जो कि भाई आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, क्यों इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, कि भाई बड़ी अच्छी कंपनी है, अच्छे बेनिफिट्स हैं, दिस इज ऑब्वियसली देयर, लेकिन ये आपने कहना नहीं। तो ये कि जस्ट हैव अ स्टोरी। ये जो बात की अभी हसीब ने कि भाई ये जो चीज है कि व्हाई दिस कंपनी एंड व्हाई दिस रोल, अगर ये एक्सप्लिसिटली नहीं भी करते ना ये सवाल, तो आप ये समझें कि इन तीनों सवालों के जवाब इम्प्लिसिटली इन द एंटायर इंटरव्यू आपने देना जरूर है, लेकिन मे बी इनडायरेक्टली। पूरे अगर घंटे 2 घंटे का इंटरव्यू है या 4-6 इंटरव्यूज हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ डे, implicitly they are trying to figure out why should they hire you, why are you a good fit for the company and why are you a good fit for the role. तो इवन अगर एक्सप्लिसिटली ना भी हो तो ये चीज़ खुद रिसर्च करके जानी चाहिए। और इसमें मैं एक और चीज़ अगर ऐड कर दूं कि मैंने देखा खासतौर पे अमेरिकन कंपनीज में तो नहीं, लेकिन यूरोपियन कंपनीज में खास तौर पे वो कंपनी वैल्यूज को भी कुछ इम्प्लिसिटली असेस कर रहे होते हैं। तो जब भी आप अगर फॉर एग्जांपल किसी यूरोपियन कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आप ये ज़रूर देखें कि कंपनी वैल्यूज़ क्या हैं, और आप अपनी स्टोरी को उन कंपनी वैल्यूज़ के साथ किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंपनी, अब ये डिसऑनेस्टी किसी कंपनी की वैल्यू नहीं होगी, ऑनेस्टी होगी। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली उन्होंने से किया है कि भाई ऑनेस्टी एक वैल्यू है, या इंटेग्रिटी एक वैल्यू है, या केयरिंग फॉर पीपल एक वैल्यू है, और ये कंपनी वैल्यूज के अंदर उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहीं डाला हुआ है, एनुअल रिपोर्ट में डाला हुआ है, वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो दे आर लुकिंग फॉर योर स्टोरी टू कनेक्ट टू दोज सॉर्ट ऑफ कंपनी वैल्यूज। पाकिस्तान में आई डोंट नो कि ये इतना ज्यादा एहसास होता है कि नहीं होता, लेकिन यूरोपियन कंपनीज में खासतौर पे जो लार्ज यूरोपियन कंपनीज हैं वो तो डेफिनेटली करती हैं। Jafal, we have a question from Ali. Ali? No, it's not a question. It's more of a comment. And interestingly, I was going to make the exact same point जो अभी फहद ने बात की है कि कंपनी के मिशन और वैल्यू के साथ अगर आप अपने यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क या हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर्स को समहाउ लिंक करके शो कर पाएं कि यू आर ऑलरेडी पैशनेट अबाउट दोज वैल्यूज एंड यू हैव टैंजिबल एविडेंस ऑफ having exhibited those in the past, so that really helps you stand out from the crowd. So जो फहद ने पहले बात की ना कि मैं बहुत मतलब एज अ कैंडिडेट अगर मैं अपनी तारीफें डायरेक्टली करूं तो वो थोड़ा आपके भी ऑकवर्ड फील होगा और इंटरव्यूअर को भी वो थोड़ा सा ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वाली फीलिंग दे सकता है। बट व्हेन यू लिंक इट टू देयर कॉर्पोरेट वैल्यूज और जो उनका जो भी कंपनी का मिशन है, या यू कैन से मेंशन कि आपको फाउंडर या कंपनी के किसी सीनियर लीडर की करियर स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी है और उस वजह से आप एक बेहतर फिट हैं इन टर्म्स ऑफ योर लेवल ऑफ पैशन एंड एनर्जी दैट यू ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्सनल डायमेंशन हमेशा हेल्प करता है। एंड एंड यू ऑब्वियसली हैव टू बी कैंडिड अबाउट इट, बट जितना ज्यादा आपका टेलर्ड होगी ना स्टोरी, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लिटरली 15 मिनट की बात है, आपने कंपनी की वेबसाइट पे जाके थोड़े से उनके वैल्यूज देखने और ये सोचना है कि हाउ कैन यू लिंक योर पर्सनल स्टोरी टू दोज वैल्यूज एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन helping you stand out from the crowd. I think a lot of the entire thing about interviews is standing out from the crowd, because the thing is कि as I said कि बहुत competitive है, the world is very competitive, just as आप हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि आपको इंटरव्यू करेंगे, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट? आप लोग भी सिर्फ एक कंपनी में तो इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं, मतलब दुनिया में सिर्फ एक कंपनी तो नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो थोड़ा सा वो फिट का भी इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे आर इन अ स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन, दे कैन रियलाइज कि मेरे पास 10 लोग आएंगे, उनमें से 10 में से किसको रखना है। इट्स नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स, समटाइम्स अदर थिंग्स आल्सो मैटर, एज अली मेंशन्ड एंड एज फहद मेंशन्ड।
सो थैंक यू सो मच इब्राहिम. अब हम आपको और टॉर्चर नहीं करेंगे इंटरव्यू के साथ. तो बट व्हाट वी विल डू इज कि हम अब ओपन करेंगे. कुछ कमेंट्स थे, आई थिंक फहद कुछ शेयर करना चाह रहे थे, कुछ हसीब शेयर करना चाह रहे थे. मेरे पास एक बात है व्हिच आई विल डू एंड देन वी विल मूव ऑन टू फहद एंड हसीब. एंड देन ऑफ कोर्स आप लोगों के जो सवाल होंगे उनका जवाब देंगे. मेरा बस एक ही कमेंट था कि एक आध दफ़ा मैंने देखा है कि इंटरव्यूज के दरमियान जब लोगों से सवाल पूछे गए तो लोगों ने नेगेटिव जवाब दिए. फॉर एग्जांपल कभी इस तरह का सवाल पूछा गया कि हम आपको कि फॉर एग्जांपल आपने पिछले एम्प्लॉयर को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने पिछले एम्प्लॉयर के बारे में एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन दिया कि ये हुआ था. इट माइट बी ट्रू, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसे. या कोई आपसे पूछे कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ के आप मैनेजमेंट की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं, या ये कि आप एक फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं, कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं. या अगर आपको पता है कि 4 लोग हैं इंटरव्यू में, सिर्फ 4 लोग हैं, तो आपने बाकी तीनों के बारे में कोई बात कर दी कि उसमें ये वीकनेस है, उसमें ये वीकनेस है. कोई भी इस किस्म की नेगेटिव बात जो है वो एम्प्लॉयर्स को ड्यूरिंग द इंटरव्यू बहुत पसंद नहीं आएगी. So they might not show you, or they might, as Fahad said, some people like spectacles, so they might enjoy it. बट ओवरऑल ये नेगेटिव जाएगा. तो इसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, बिकॉज देखें आखिर में एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों को सोशली काम करना होता है. सो दिस लाइक प्रॉब्ली 1% ऑफ एम्प्लॉयर्स और सिचुएशंस के जहाँ पर आप काम करेंगे, जहाँ पर आप अकेले होंगे. बाकी 99% में आपको बहुत सोशली इंटरेक्ट करना होगा, काम करना होगा. सो नो एम्प्लॉयर वांट्स टू बी इन अ पोजीशन के जहाँ पर वो इस तरह के एम्प्लॉयज हों जिनको आपस में इंटरेक्ट करना नहीं आता, या उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो वो एक चीज़ है कि नेगेटिव इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अवॉइड किया जाए. बट हाँ, द राइट पिक्चर हैज टू बी प्रेजेंटेड. इफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर का आपने किस वजह से छोड़ा था, आप एज मेंशन्ड इन द सेशन, आपने थोड़ा सा अपना होमवर्क करके जाना है कि आपने क्या बात करनी है, क्या सवाल आएंगे, उसके क्या जवाब देने. ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको अपनी सीवी पे बहुत स्ट्रॉन्ग होमवर्क होना चाहिए कि आपने सीवी में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, दे ऑल मीन समथिंग. देयर विल बी क्वेश्चंस दैट कैन कम ऑन दैट. तो आपको थोड़ा सा उस बारे में इल्म होना चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में, ताकि वो सवाल जो है आप उसका जवाब दे सकें. आई एम सॉरी, मैं तो बोलता रहूँगा. I'll hand over to either Fahad or Abdul, so that they can pick up. हाँ, ये कोई अभी एक हैंड रेज हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आ जाए. सर मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ. सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन था हाँ. कि जब ये क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाई यू आर द एज यू नो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस हो तो बंदा होता है, बट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप क्या मतलब एडवाइस करेंगे हम इस मामले में, क्योंकि बस किस इब्राहिम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे किस टॉपिक, हाँ किस क्वेश्चन पे आप पूछना चाह रहे हैं? पूछ रहा हूँ कि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट है ना हम, तो हमारे पास मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए हम इंटरव्यू में ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने ये किया. तो आप इस पे बारे में क्या मतलब एडवाइस करेंगे? मैं इसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ कि देखो, एट एनी स्टेज इन लाइफ आपके पास कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होती है which other people cannot provide. अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या 30 तीर मार लेंगे, तो यू शुडंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वो जो 20 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आप सेम पोजीशंस के लिए या सेम रोल्स के लिए या इवन सेम लेवल्स के ऊपर अप्लाई भी नहीं कर रहे. ठीक है, आप कर रहे हैं, यू नीड टू बी एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड योर पीयर ग्रुप. कि आप देखेंगे भाई ठीक है, पाकिस्तान में और फ्रेश ग्रेजुएट्स कौन है, आप जिधर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में किस किस्म के लोग आए हुए होंगे. कभी कभार ये होता है कंपनी इज स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, और अगर आप उन रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि भाई दूसरे बंदे ने कोई तोप चला ली होगी इंटरव्यू में. डोंट वरी अबाउट इट. और मैं इसको, मेरे पास जो कुछ जनरल एडवाइस लिखी हुई थी उसमें ये भी है कि भाई देखिए, आप ये ना सोचें कि इंटरव्यू में जा रहे हैं ना तो somebody is looking to fail you in the interview, या somebody is looking to find problems. इंटरव्यू करना जो है ना एक बहुत बड़ा ओवरहेड होता है कंपनीज के लिए. दे वांट टू डू मिनिमम इंटरव्यूज. एवरी इंटरव्यू व्हेन इट बिगिंस ना, तो उस वक्त उनका होता है कि भाई अगला जो भी बंदा आ रहा है ना, ये कोई अच्छा हो. आई नीड टू फाइंड अ वे टू से कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, एंड फिनिश दिस कम्बरसम प्रोसेस कि भाई लोगों को आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं. तो आप अपने जहन में ये अपने बारे में नेगेटिव चीजें ना रखें. आप अपनी जितनी पॉजिटिव चीजें हैं ना वो अपने जहन में रखें और उस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करें
that you will get it. Now obviously you will मतलब आप 10 इंटरव्यू करेंगे उसमें से 8 नहीं होंगे, कोई बात नहीं लेकिन जो 11वें इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे ना, अपने जहन में आपने ये रखना है कि भाई आई एम द राइट पर्सन, बिकॉज आप जब अपने आप को नहीं कन्विंस कर सकते तो फिर किसी और को नहीं कर सकते. टू काइंड ऑफ कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट. अब जरूरी नहीं कि वो कोई 100% मैच हो, लेकिन यू फाइंड द थिंग्स के जहाँ पे लर्न होता है. अल्तमश ने कुछ आई थिंक हैंड रेज किया था, कुछ एडवाइस देना चाह रहा था स्मान. एक्चुअली हाँ, मैं कह रहा था कि मतलब आई स्ट्रांगली एग्री विद यू कि इंटरव्यूइंग प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है. कंपनीज नहीं करना चाहती, दे वांट टू फाइंड द राइट पर्सन. एंड द थिंग इज के आई थिंक आई डिड एन इंटरव्यू लास्ट वीक एज वेल, और उसमें मुझे पता था कि जो लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, दे आर नॉट एज टेक्निकली साउंड, बट मेरे दिमाग में ये भी है कि वो कौन सी पोजीशन है और उसमें जो आएगा वो क्या करेगा. एज फहद सेड कि जो आदमी आएगा, आपको पता है आपको किस चीज़ के लिए हायर करना है और उसके लिए क्या कैपेबिलिटीज हैं. और ऑफ कोर्स आप लोगों को इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग इज कि आप लोग फ्रेश हैं, न्यू हैं, आपने एजुकेशन ली होगी तो आपको बेसिक्स पता होंगे. लेकिन जिस आदमी का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ऑफ कोर्स एज मेंशन्ड, उसको वो पोजीशन नहीं दी जाएगी, उसके लिए कोई दूसरी पोजीशन होगी. तो आप जब अप्लाई करते हैं पोजीशन के लिए, तो इंटरव्यू को पता होता है कि इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स आएंगे और वो कम्पीट करेंगे. दूसरा फिर ये कि जो ऑल्दो ये चीज़ आपने इंटरव्यू में रिपीट नहीं करनी, लेकिन द थिंग इज कि जो एनर्जी और जो एंथुजियाज्म फ्रेश ग्रेजुएट्स में होता है, वो उसके बाद आपको कभी नहीं मिलता. तो वो भी एम्प्लॉयर्स को पता होता है कि अगर हमें किसी आदमी से बदतमीजी की हद तक ज़्यादा घंटे काम करवाना है तो फ्रेश ग्रेजुएट होना जरूरी है, ताकि वो कर लेगा और कोई नहीं करेगा. तो इसलिए एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत स्ट्रेंथ होती है इस बात की. हर तरह के लोग चाहिए होते हैं, उनको एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए, उनको फ्रेश लोग भी चाहिए, उनको मेहनती लोग भी चाहिए, उनको एक दो लोग ऐसे भी चाहिए जो बस जोके मारते रहे ऑफिस के अंदर, ताकि सब लोग ऑफिस के अंदर दे डोंट वांट टू किल देमसेल्व्स, यू नो. सो दे वांट ऑल टाइप्स ऑफ. मजाक कर रहे हैं लेकिन हाँ, असल में नहीं चाहिए क्या? अच्छा एक और भी मेरे पास ये कि मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि वैसे तो कुछ इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं कि भाई एक कंपनी है, उसने एक ही टाइटल है, उसके ऊपर 100 लोग हायर करने हैं या 20 लोग हायर करने हैं, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है. लेकिन कभी कभार ये होता है कि कोई एक पोजीशन खुली है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक बंदा हायर करना है उन्होंने. हो सकता है कि एज फ्रेश ग्रेजुएट आप उस तरह की पोजीशन के लिए शायद अप्लाई ना कर रहे हो, लेकिन लेट से 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर अप्लाई कर रहे हैं. उसमें फिर ये होता है कि ज्यादा फैक्टर्स बहुत सारे इस तरह से होते हैं विच आर आउटसाइड योर इंटरव्यू एंड यू, विच इफेक्ट कि कौन सेलेक्ट होता है. कि फॉर एग्जांपल कि भी कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वो रोल कभी कभार ये होता है कंपनी एडवर्टाइज कर देती है, अभी तक उन्होंने अप्रूव नहीं कराया होता, फाइनेंस से वो FTE या हेड अप्रूव नहीं कराया होता, तो इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो अप्रूव ही नहीं हुआ, और फिर वो आपको लग रहा होता है कि मैंने शायद इंटरव्यू ठीक नहीं दिया. ऐसे भी होता है कि मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद यू. कभी कभार ये होता है कि ठीक है, लेट्स से कि दे फाइंड समवन बेटर देन यू, बट दैट पर्सन may have other options, so they might come to you anyway. मेरे साथ एक दफा इस तरह से हुआ था कि मतलब मैंने अप्लाई किया, मुझे अगले दिन जो है ना ईमेल पे वो रिजेक्शन आ गई. 4 महीने बाद मुझे रिक्रूटर ने दोबारा फोन किया कि भाई आपने एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया Are you still interested? तो मुझे मेरे जहन में है कि ये हुआ होगा, जरूर यही हुआ होगा कि दे हैड समवन, या तो बेटर कह लें या मोर सूटेड कह लें, या जो उनको ज्यादा पसंद आया होगा, और वो फिर पूरा प्रोसेस हुआ होगा, बात नहीं बनी होगी, वो कहीं और चला गया होगा या पैसों पे नहीं मान रहा होगा, वट एवर द केस. लेकिन अब मैं अगर ये सोचूं कि मैंने अप्लाई किया और मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो ओहो मेरे में को इस तरह से डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव्स. आप 150 जगहों पे अप्लाई करेंगे, 99% नहीं होगा, आप यू जस्ट नीड द वन, यू डोंट केयर अबाउट every company, every position accepting you. So चीजें मैं खुद बता सकता हूँ कि जिंदगी में 90% मैंने प्रॉब्ली इंटरव्यूज या तो ये कि I failed miserably या फिर I was not appropriate, या तो फिर ये कि अगर उन्होंने ऑफर की भी तो वो it didn't work for me. So 90% of my interviews probably were I wouldn't say useless, मतलब क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ उनसे. लेकिन हाँ, ये हाँ भी हैंड रेज है आपके सवाल. Yes sir, thank you sir, but I have one more question. Is the floor still open? हाँ पूछें आप ही के लिए सेशन है. सर बात दरअसल ये है कि लाइक मी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी अवेलेबल हैं. तो अब सर है कि सर काफ़ी जगह मतलब मैंने बहुत अप्लाई, मेरे जैसे और भी स्टूडेंट हैं तो सबकी सेम ही थिंकिंग जनरल
सर मैंने भी हर जगह अप्लाई किया सर, मैंने भी मतलब 2-3 इंटरव्यू ऑनलाइन दिए हैं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड भी दिए हैं, बट ये है कि सर एक आपके ऐसा मतलब अभी पॉइंट आता है कि आप कहते हैं कि मैन दैट इज इनफ, मतलब कि मैं डिसहार्ट हो गया, मैं और नहीं देना चाहता सर। आप मतलब उस बारे में थोड़ी मोटिवेशन सर, क्या मतलब सर इस सिचुएशन में सर, जब आप काफी डिप्रेस हैं ये वो। एक चीज मतलब अगेन अभी जो हमने आज सारी बातें की हैं कि अगेन इसमें मतलब हमने मतलब कोई मतलब टेक्निकल चीजें डिस्कस नहीं की, राइट? सो इट्स अ बिट हार्ड टू से कि मतलब वीकनेसेस कहाँ पे हैं, ठीक है? वीकनेसेस नॉन टेक्निकल साइड पे हैं, वीकनेसेस बेसिकली टेक्निकल साइड पे हैं। सो इट्स अ बिट हार्ड टू से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट अगेन आई थिंक इसमें डिसहार्ट होने की ऑनेस्टली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब मैंने भी मतलब 20-30 इंटरव्यूज इसी तरह किए थे, ठीक है? तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हाँ वो आई नो, वो शायद हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन जब आपको नहीं मिल रही होती है, आपका एक वो माइंडसेट होता है। लेकिन अब ये इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू सक्सीड इन लाइफ एनीवे इज योर एबिलिटी टू कीप एब्जॉर्बिंग फेलियर एंड स्टिल कीप गोइंग। तो ये सिर्फ इंटरव्यूज में नहीं होगा। लेट्स से इंटरव्यू हो गई, आपकी जॉब शुरू हो गई, वहां पर भी आपको सेटबैक्स होंगे, फेलियर्स होंगे, डिसहार्ट होंगे। आप सोच रहे हैं कि भाई ओहो मैंने ये बड़ी कोशिश की थी और एंड में कोई प्रमोशन नहीं हुई। ये दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, ऑलवेज। तो ये सिर्फ इंटरव्यूज की बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जॉब आप सबको मिल जाएगी अगर आपने जीआईके से ग्रेजुएट किया है ना। ये नहीं होगा कि जनाब 20 साल गुजर गए हैं और आपको जॉब ही नहीं मिली हो, इस तरह नहीं होने वाला। दी ओनली थिंग इज कि आपने किस तरीके से अगर मुझे बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ व्हेन आई वाज अनएम्प्लॉयड और मैं अप्लाई कर रहा था, आई वाज नॉट फाइंडिंग सक्सेस। तो फिर आई हैड टू अ फ्यू मंथ्स लेटर टेक अ स्टेप बैक, आई एम मेकिंग सम स्ट्रेटेजिक या डायरेक्शनल मिस्टेक। तो फिर मैंने कंप्लीटली अपना कुछ 1-2 महीने लगा के मैंने पूरा रीओरिएंट किया। मैंने कहा कि भाई डिफरेंट एरिया में अप्लाई करना है, डिफरेंट चीज़ें मैंने अपने सीवी पे डालनी है, डिफरेंट मैंने किस्म की जॉब ढूंढनी है। मैंने इवन अपने लेवल से मेरा ख्याल था कि मुझे जिस लेवल पे जॉब मिलनी चाहिए, कोई मिड लेवल पर, जूनियर लेवल पर अप्लाई करके और फिर जॉब वहां से दोबारा शुरू किया। तो ये चीज़ मैंने भी की हुई है। आई नो कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, खास तौर पे व्हेन यू आर अंडर द प्रेशर कि भाई आपने बिल्स पे करने हैं, आपने यू फील लाइक कि भाई आई नीड टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ। तो वो एक साइकोलॉजिकली टफ टाइम होता है, लेकिन ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। यू हैव टू कीप गोइंग यार। और टफ टाइम ना मैं देख रहा हूँ कि as times go on there are more tough times now. हम लोग जब ग्रेजुएट हुए थे तो the world was slightly different place, economies grow कर रही हैं, बहुत अर्से से स्टैग्नेट कर रही हैं, तो टफ टाइम रहेगा। बट द थिंग इज कि एज फहद सेड कि आप लोग चूंकि जीआईके से पढ़ के निकले हैं तो आप लोगों को जॉब इंशाल्लाह जरूर सबको मिल जाएगी। बट एक पीरियड होगा जो कि थोड़ा पेनफुल होगा, उसमें आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करना होगा और थोड़ा सा उस पीरियड को यूज करें टू इम्प्रूव योर ओन स्किल्स। आई एम श्योर आप सबके पास स्किल्स हैं और एम्प्लॉयर्स को भी स्किल्स चाहिए होंगी, एम्प्लॉयर्स को कल भी चाहिए होंगी, आज भी चाहिए थी। तो बनिस्बत इसके कि आप ये कहें कि 2 साल ज़ाया हो गया, मैंने कुछ नहीं किया घर में बैठ के, आप ये ढूंढें कि उन 2 सालों के अंदर आप क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि द थिंग इज के इवेंचुअली कहते हैं ना कि इवेंचुअली द लाइट विल कम आउट एंड सुबह हो जाएगी एंड देन यू इंशाल्लाह फाइंड अनदर जॉब। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम और लोग भी आएंगे उसी जॉब के लिए और अगेन आपको कम्पीट करना होगा। तो अगर आपने स्किल्स सीखी होंगी तो यू विल अगेन बी एट द फ्रंट ऑफ द लाइन इंस्टेड ऑफ नॉट बीइंग देयर। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी किसी ने हाथ रेज किया। क्वेश्चंस। हाँ, उस्मान असलम। Yes, sir. Sir, so I had 2 questions. The first question was that right now I am sitting in GIK in Topi, and your profiles are very inspiring. So I just wanted to know how to get into like Silicon Valley or what roadmap to take from here, because it's a long journey, but that is the ultimate goal. And the second question is kind of like let's say like I don't know, like a paradox kind of, because sometimes in interviews, when they ask me my weakness, I say it's my interview skills. And I don't know if that's good weakness or not. No. It's ironic, but you have to find another answer. you do. मुझसे जब लोग पूछे तो I used to say कि my weakness is my desire to make everything perfect.
But then I was told that that's not a weakness. चलो मैं And don't say that again. मैं एक जोक सुनाता हूँ इसके बारे में कि किसी से इंटरव्यू में पूछते हैं कि अच्छा व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट इज योर वीकनेस, वो कहता है आई एम टू ऑनेस्ट। तो इंटरव्यूअर्स एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं कि भाई दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इंटरव्यूअर कहता है आई डोंट गिव अ डैम। So he was too honest, but that is not the thing you should take to an interview. तो ये अच्छा, ये जो दूसरा पहला सवाल था, I think I don't, maybe why don't you message me? Why don't you message me separately afterwards? Just in the interest of time. I don't know मेरा कांटेक्ट आपके पास है कि नहीं है। ईमेल तो आया ही होगा, नहीं तो आप इनसे क्या नाम है, उमर, एक और चीज की जा सकती है। जी मैं शेयर कर दूंगा सर, बट मेरा ईमेल आप पता है क्या, मेरा ईमेल या मुझे लिंक्डइन के ऊपर अगर आप मैसेज कर दें, आई विल लिंक्डइन के ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें, आई कैन मे बी शेयर विद यू आइडियाज। लेकिन ये कि जनरल ग्रुप के लिए डोंट हैव दीज टू स्पेसिफिक टारगेट्स कि भाई इस जगह पे या इस कंपनी में या इस स्पेसिफिक चीज पे, हैव अ लिटिल बिट ब्रॉडर, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक डेस्टिनी होती है, अपनी एक, मैं बहुत रैंडमली इधर पहुंच गया हूँ जिधर मैं हूँ, और मैं भी कोई अपने आप को कोई बहुत अकम्प्लिश्ड फील नहीं करता। सो डोंट मुझसे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, बेहतर लोगों से इंस्पिरेशन लें। चलो मैं ये कहने वाला था कि सिलिकॉन वैली पे इतना मत हैंग अप करें, इवेंचुअली सबको शंघाई जाना है क्योंकि सारी इकोनॉमी वहां पे होगी। That's another thing. अच्छा, तो ये raised hand, I think RTN गाइडलाइन जिनका नाम है। जी Yes, sir, I have a question regarding the interview. Sir, as we are giving too much interviews nowadays, then how to do self-analysis after the interview? Like sometimes they don't send us insights of our interview. So, but sir, we have to improve for ourselves for our next interview. तो मैं ना एक रिकमेंडेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये इट कैन बी क्वाइट कंट्रोवर्शियल। सो in my previous role, when I was applying for a new job, so what I did was that I did a course on becoming an interviewer, right? So मेरा पॉइंट ये था मैं सीखूं कि यार कि अगर मैंने इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो अगर मैं हूँ इंटरव्यूअर तो मैं किस तरह क्वेश्चन पूछूंगा, मैं किस तरह आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगा। तो मैंने वो आई थिंक एक बुक थी, मतलब हाउ टू बिकम अ गुड इंटरव्यूअर समथिंग, मैं उस बुक का लिंक भेज दूंगा। आई थिंक वो फ्रीली बुक थी अवेलेबल, मैंने वो पढ़ी थी और कुछ वीडियोस थी जो मैंने देखी थी। सो तो मैंने बेसिकली एक रिवर्स प्रिपरेशन की थी और मैंने कहा था ओके हाउ टू बिकम अ गुड इंटरव्यूअर। ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू हूँ तो मैं बेसिकली कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया था अपने इंटरव्यू के लिए। I mean, that might be a very unconventional approach, but I did that. नहीं, ये एक्चुअली बड़ा अच्छा किया, बिकॉज मैंने बहुत लेट अपने करियर में जब मैंने खुद इंटरव्यूज करने शुरू किए, उस वक्त पर आई थिंक मेरी अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स भी बेहतर हो गई, बिकॉज आई हैड अ पर्सपेक्टिव ऑन द अदर साइड। लेकिन जिस तरह हसीब ने कहा कि यू कैन बाईपास दैट, यू कैन बाय अ बुक, यू कैन डू अ शॉर्ट कोर्स, लिंक्डइन पे कोर्सेज होते हैं, तो गेट अ व्यू फ्रॉम द अदर साइड, उससे हाँ वाकई काफी बेहतर होते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि फीडबैक जो है ना, अक्सर ये होता है कि कंपनीज जो है ना वो फीडबैक या तो नहीं देती या कोई मीनिंगफुल फीडबैक नहीं देती। तो ये ओवर टाइम यू हैव टू काइंड ऑफ ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। अगर आपने 4, 6, 8, 10 जगह पे अप्लाई किया है, विद सीवी नहीं रिस्पॉन्स आ रही, मे बी यू नीड टू चेंज इट। आप सीवी के ऊपर मेरे पास जनरल एडवाइस मतलब है, लेकिन वो आई थिंक इस टाइम के लिए इतनी मतलब टू शॉर्ट अ टाइम, कोई और सेशन कर सकते। अभी वी कैन टॉक अबाउट सेटिंग अप अ सेशन जस्ट ऑन सीवी एंड गेटिंग योर फुट इन द, वो वाली चीज। और प्रिपरेशन में जिस तरह हसीब ने पहले कहा कि प्रिपरेशन इज द की, और उस प्रिपरेशन में ये भी होता है कि समटाइम्स आप प्रिपेयर इस तरह से कर रहे होते हैं कि आप कंटेंट तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं करते। मैंने एक ऑडियो बुक थी, एक बंदा है बजी कोएन, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक थी। उसने ये किया कि वो जेपर्टी एक प्रोग्राम है टीवी के ऊपर, बहुत अरसे चलता है,
अच्छा बहुत अरसे से चल रहा है, उसके लिए वो उसने प्रिपेयर किस तरह से किया कि उसमें क्वेश्चंस होते हैं एंड इट्स वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन। तो वो ये करता था कि उसने अपने एक दोस्त को या ट्रेनर को ना कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस कि भाई हाँ भाई फलाने शहर का कौन सा कैपिटल है, फलाने टीवी शो का कौन एक्टर का नाम क्या था, इस तरह के ट्रिविया टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उसने वो पकड़ाया अपने ट्रेनर को, वो जिम में एक्सरसाइज करता था और ट्रेनर से कहता था कि while I am exercising and while I am doing pull-ups या while I am stressing myself, उसके दौरान तुम मुझसे सवाल करो। तो वो उसने सिचुएशन के लिए अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस तरह की चीजें की, नॉट जस्ट द कंटेंट इटसेल्फ बट ट्राइंग टू आंसर द कंटेंट इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और भी चीजें होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अब किसी दूसरे शहर में सुबह 8 बजे इंटरव्यू है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने पहुंचना है। अब अगर मुझे सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं है तो मैं कंटेंट तो प्रिपेयर कर लूंगा, लेकिन आई विल बी इन अ सिचुएशन, मेंटल स्टेट, मेरी बॉडी, मेरा माइंड उस स्टेट में नहीं होगा कि आई हैव नेवर बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर। तो आप उस टाइम पर उठना शुरू करें, आप वो कपड़े पहनना शुरू करें सो दैट वो जिन शूज के अंदर आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो पहली दफा आपने जिंदगी में ना पहने हुए। मतलब ये दीज आर सटल थिंग्स, लेकिन कभी कभार ये होता है ये जो सिचुएशनल चीजें हैं ना, दे गेट यू डाउन। कि आप इंटरव्यू में तो पहुंच गए, आपके पास जवाब भी सारे हैं, लेकिन इंटरव्यू की सिचुएशन ऐसी स्ट्रेसफुल और वो एक आप समझ लें हाई प्रेशर सिचुएशन होती है कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। जस्ट टॉकिंग टू पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैविंग अ 1 hour कॉन्वर्सेशन, मैं नहीं करता था ऐसे लेकिन ये चीज़ करनी पड़ जाती। मैं इस बात पर ना इस तरह पूछूंगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, आपने जैसे 10 इंटरव्यूज किए, 20 इंटरव्यूज किए हैं, डू यू थिंक कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू पिछले इंटरव्यू से बेहतर हो रहा है? ठीक है, इफ दैट्स द केस देन इज फाइन, ठीक है। बट आपको लगता है कि आपके वैसे उसी लेवल पे इंटरव्यूज हो रहे हैं और मे बी सेम मिस्टेक्स हर इंटरव्यू में हो रही हैं, देन देयर इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन। सो आई थिंक, जो मैं बात करें कि सेल्फ मतलब उसकी रिफ्लेक्शन की जनरली फीडबैक नहीं मिलती, ठीक है। अब एक कंपनी ने 100 लोगों के इंटरव्यूज किए और 100 लोगों को डायरेक्टली फीडबैक नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ खुद सोचनी है कि मेरा ये इंटरव्यू था, मैं पिछले इंटरव्यू से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप खुद अपने आप थोड़ा सा एनालाइज करना है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मतलब ये काफी पर्सनल एग्जांपल है, जो मतलब इससे मतलब मेरा रोल है, करंट रोल है, मैंने बात की थी, प्रिपरेशन की बात की थी, ठीक है। मुझे उसमें था आइडिया कि मेरा फाइनल इंटरव्यू इस बंदे के साथ है, ठीक है, और ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट है। मैंने उस इंटरव्यू के लिए मैंने 2 दिन लगा के कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे उसको मैंने शॉर्ट कोर्स किया, इवन दो कि मेरे रोल का कॉन्ट्रैक्ट लॉ से कहीं से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट बिकॉज टू फाइंड दैट अलाइनमेंट विद दैट इंटरव्यूअर। तो मैंने चीज एक्स्ट्रा की, और हुआ उसमें इवेंचुअली क्या हुआ कि इंटरव्यू के बाद, ठीक है, मैं उससे हाफ एन आवर की डिस्कशन हुई ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। I mean, I think these small things, I mean, showing that you have put some effort, some extra effort, make you stand out. और again, अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें subsequent interviews में improve नहीं हो रही, then this is something which you have to work on. Improve हो रही है, then you are fine. Then it's a matter of time. So I think we are running out of time. One last question, like Aisha Habib की तरफ से question है। सवाल मैं वो देखा था, आयशा ने सवाल पूछा। आयशा, the thing is कि it would not be possible for you to know because देखिए आप ये पूछ नहीं सकती इंटरव्यूअर से कि आपने मेरी सीवी पढ़ी है या नहीं। जनरली सवाल यही होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और जनरली द आइडिया है कि आप बेसिकली 2-ish minutes is a good idea, जो आपको एक पिच प्रिपेयर करनी चाहिए अपने लिए। मैं पहले 2 मिनट में क्या कहूँगी। अब इसमें सिर्फ ये है कि एट द एंड ऑफ दैट फिर द नेक्स्ट क्वेश्चंस वुड बी वेरी डिफरेंट। उनको हो सकता है वो कहेंगे नहीं इसकी फर्दर डिटेल्स, उसकी फर्दर डिटेल्स, दैट विल गिव यू एन आइडिया। द अदर थिंग इज कि इट इज नॉट 100% केसेस में कि जहाँ पर इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा समझ में आई होगी आपकी सीवी। इट्स पॉसिबल दैट दे हैव रेड इट, तो दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है, इसको बातें समझ में हैं, इसकी पढ़ाई भी ठीक है। लेकिन इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है या आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो उसको वो कहेंगे ठीक है, लेकिन दे माइट स्टिल नीड मोर डिटेल्स। सो द रूल ऑफ थंब इज के अबाउट 2 मिनट ब्रीफ इंट्रो, जो थोड़ा सा आपके बारे में, थोड़ा आपकी एजुकेशन के बारे में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में, एंड एज वी टॉक्ड अबाउट एनी स्पेशल इंटरेस्ट और स्किल्स दैट यू हैव
that you think are slightly unique, उसके बारे में आप बात करें, and then take it from there. But इंटरव्यू से आप ये पूछ नहीं सकते कि उनको पता है, या फिर अंदाजा नहीं लगा सकते, वो 2 मिनट के बाद ही आपको पता चलेगा from the further questions that will come up. हाँ, एक इसके ऊपर छोटा सा और मैं कमेंट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, इवन अगर आपका सीवी पढ़ा हुआ भी हो किसी ने, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गाइड द कॉन्वर्सेशन के एक तो ये कि पूरा एंड टू एंड कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ा हुआ भी हो किसी ने तो यू कैन लीव अ फ्यू क्या कहते हैं पॉइंटर्स या कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दें या कोई इस तरह से बीच में सीड्स डाल दें कि क्योंकि इंटरव्यूअर फिर वहां से आगे कॉन्वर्सेशन करता है और वो चीजें विच यू वांट देम टू टॉक अबाउट कि भाई आप उसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कोई मोर्सल्स छोड़ दें कुछ के ताकि वो उसको उठा के और फिर वहां से आगे बात करें। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा और टाइम तो है सिंस बीइंग अ वीकेंड। आई नो कि क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने चैट के ऊपर अपना ईमेल छोड़ दिया है और मुझसे आप लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू क्या कहते हैं वन ऑन वन या अदरवाइज भी मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो दैट बीइंग सेड, अगर किसी के पास टाइम खत्म हो गया तो यू आई नो कि 3 मिनट ओवर हो गए हैं, बट आई कैन स्टे फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। हाँ भाई, ये आमना का सवाल था, बीइंग ग्रेजुएट मैनेजमेंट टेक्निकल कंपनी फॉर यू और मैनेजर कोर्स इंजीनियर्स। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये कोई मैनेजर वाला कोई जवाब देना चाहेगा, हसीब या कोई? आमना again, even like my profile is not in that way, but I mean, I think many technical companies, I think same goes for you, Fahad. I mean, like in these large tech organizations, I think probably 40% of the workforce is non-technical. So they need lots of program managers, project managers, marketing managers, and so on. So there is definitely lots of room for management science graduates in technical companies. So, but again, I mean, I can't comment more precisely on this question. हाँ, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल पहली रोल ऐसा मिले कि जिसमें आपको डायरेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाएं, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो जाते हैं या और भी हो जाते हैं। और मैनेजमेंट का ये कि मैं थोड़ा सा मे बी आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड, लेकिन प्योर मैनेजमेंट जो है ना, वो इस तरह की स्किल है कि उसके ऊपर अगर तो आपको वाकई में सक्सेस चाहिए प्योर मैनेजमेंट की, तो वो तो बहुत लेट करियर में या तो मिलती है आपको, या तो फिर आप वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। तो शुरू में यूजुअली आपको कोई ना कोई यूनिक या कोई वैल्यू एडेड चीज चाहिए होती है जिसमें आप खुद कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, रादर देन कि भी आप दूसरे जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको मैनेज करें। तो ये मेरा, आई माइट बी अ लिटिल बिट बायस्ड ऑन दिस। अग्रीड। मेरा भी पर्सनली एक्सपीरियंस यही रहा है कि इवन दो बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं जो कि एमबीए करके आए थे आफ्टर द स्टडीज, एंड येट दे हैड टू स्टार्ट एट एंट्री लेवल पोजीशंस एंड दे हैड टू स्पेंड दोस 10s of years, एंड टू एन एक्सटेंट कुछ लोगों में एक लीडरशिप एबिलिटी होती है जो कि आई थिंक वर्क एनवायरनमेंट में डेवलप होती है मोस्टली, बट लेकिन उसके अलावा यू हैव टू पुट इन दैट टाइम, ताकि फिर इवेंचुअली फिर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है बिकॉज यू वर एबल टू डू वेल एंड आपने एफिशिएंसी इंप्रूव की, तो फिर आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकेंगे टू, एंड देन सो इट जस्ट इट और हो सकता है कि ओवर टाइम यू रियलाइज कि मैनेजमेंट इज नॉट व्हाट इट्स ऑल काइंड ऑफ मेड आउट टू बी। मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ा एक तरह से कुछ गंदा काम भी है। आपको बहुत सारी बीएस जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट बीएस भी करनी पड़ जाती है, बहुत लोगों के इश्यूज आपको मैनेज करने पड़ जाते हैं। हर किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता, कुछ लोगों का होता है एंड दे थ्राइव एट इट, कुछ लोगों का नहीं होता। यू माइट डिस्कवर ओवर टाइम दैट मे बी मैनेजमेंट इज नॉट द थिंग फॉर यू, लेकिन इफ इट इज द थिंग फॉर यू तो आपको यू नीड टू फाइंड अ पाथ टू गेट देयर टू ऐड वैल्यू एट मैनेजमेंट लेवल, रादर देन वो डायरेक्टली यूजुअली नहीं मिलता। इसमें एक और चीज भी है मैनेजमेंट। मुझे याद है कि हम लोग जब थे अपने फाइनल ईयर में और हम लोग देखते थे अपने करियर्स को, तो मैनेजमेंट वाज द ऑप्शन अवेलेबल, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे आप अपने करियर को इस तरह डेवलप करते हैं कि जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली लुक्रेटिव हो, राइट? दैट इज व्हाट अ करियर इज फॉर। यू हैव अदर थिंग्स इन लाइफ, आपकी फैमिली होती है, आपके इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन करियर स्पेसिफिकली टू एन एक्सटेंट फाइनेंशियल लुक्रेटिविटी के लिए होता है, राइट? कुछ लोग होते हैं इनके पैशंस होते हैं, मोस्ट पीपल डोंट हैव एनी सच स्पेसिफिक पैशंस कि मुझे एक चीज करनी है, जिनको नहीं होता। तो दिस इज द वे यू थिंक अबाउट इट कि मुझे मैनेजमेंट
में जाना है because that is the best option available from a financial perspective. But the thing is कि the world is a very big place and it's not necessary कि that is the only path. बहुत सारे और paths भी available हैं. टेक्नोलॉजी में आप लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं, अब तो पूरी दुनिया ही लगता है कि टेक की है. हम बैंकिंग में आ गए थे उस जमाने में समझ के कि बैंकिंग की दुनिया है, बट देन इवेंचुअली यू रियलाइज कि नहीं, टेक में इट हैज वर्कड आउट वेल. सो इट शुडंट बी हंग अप ऑन द फैक्ट कि मुझे सिर्फ मैनेजमेंट, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें. एंड अगर आपको करना भी है तो एज फहद मेंशन्ड, इट्स प्रॉब्ली गोना टेक अ बिट लॉन्गर बिकॉज उसके थोड़ी सी स्किल्स और थोड़े से रोल्स आपको थोड़ा टाइम लगाना होता है. इसके बाद आपको उस पोजीशन में आप सही बैठ सकते हैं जो आपको इफ यू वांट टू. सही सक्सेस मिलती है ना, वो जब आप बहुत ही ऊपर लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, फिर आपको सही सक्सेस मिलती है प्योर मैनेजमेंट में. उससे पहले प्योर मैनेजमेंट का बड़ा मुश्किल होता है काम, खासतौर पे मिडिल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी टफ. अच्छा, एक और सवाल बीच में किसी ने हैंड रेज किया था, सॉरी मुझे अभी नजर नहीं आ रहा. इफ देयर इज स्टिल अ हैंड रेज्ड, आई थिंक सो इन्हीं का था, जुनैद का ही था जिनका ये क्वेश्चन है. जुनैद, हाँ सॉरी क्या क्वेश्चन था, मैं दोबारा खोल लूं. We should reduce the same अच्छा 6 to 7 minute interview. अच्छा वैसे 6 to 7 minute जो है ना, उसमें I don't think there's anything wrong that you are doing 6 to 7 minute. अगर कोई, मैं जब इंटरव्यू कर रहा हूँ और अगर अच्छा ना भी जा रहा हूँ ना, तो 20-25 मिनट तो मैं फिर भी देता हूँ जस्ट टू सी कि भाई क्या मैं कोई सही सवाल नहीं पूछ रहा, क्या मैंने कोई मौका नहीं दिया किसी को. 6 to 7 minutes is like a very weird thing. उसमें आप कुछ भी मेरे ख्याल से डिड्यूस ना करें 6 to 7 मिनट्स. दैट मींस के वो बस जो इंटरव्यूअर्स हैं वो आए हुए हैं सिर्फ खाना पूरी के लिए, और उनको या तो पहले से कोई मिल गया है या बस वो they are not interested. Don't reduce anything about yourself. 6 to 7 minutes is exactly it's not a reflection on you because it's also possible कि आपसे पहले जो इंटरव्यू था पिछला वाला for some reason उन्होंने कह दिया कि अच्छा ठीक है फाइनल करना है. And then because you're sitting there, तो आपकी मतलब it's nothing to do with you, it's to do with them basically. मतलब ये कि बिल्कुल ही आपने एंटर करते ही कोई अजीब सी बात कर दी हो जो कि आई एम श्योर के नहीं की होगी, लेकिन आई डोंट नो कि 6 to 7 मिनट्स में क्या गलती हो सकती है. 6 to 7 मिनट्स तो मैं पहले 5 मिनट तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, रोल के बारे में बता रहा होता हूँ. पहले 5 मिनट में तो मैं बात कर रहा होता हूँ अगर इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर कैंडिडेट की बात शुरू होती है. तो आई एम नॉट श्योर कि 6 to 7 में क्या हो रहा है. Anybody else has any insight? Haseeb? I mean, yes. I mean, like you said, Fahad, and also Altamash, it's not a reflection on you. So, but so कुछ कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पे let's say अगर आपको एज एन इंटरव्यूअर लगता है कि this person will get a strong reject or something, you can pause the interview right away. So, but I think वो बहुत थोड़ी सी कंपनी जो ऐसा करती हैं. But I think yes. थोड़ी सी मतलब रिफ्लेक्शन करें कि are you wearing something wrong, या मतलब बहुत ही कोई एक और चीज भी है इसमें, एक और चीज भी है. See, the thing is that it goes both ways. कि कंपनी को भी सर्टेन तरह के लोग चाहिए होते हैं, आपको भी सर्टेन तरह की एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है. अगर 6 to 7 minutes of interaction में उस कंपनी ने डिसाइड किया कि you're not the right person, then it's as I said first कि मुझे तो बहुत ही मतलब सेंस नहीं समझ में आई इस बात की. लेकिन अगर 7 मिनट में कंपनी ने डिसाइड किया कि आप उसके साथ नहीं काम कर सकते, तो आई थिंक आपके लिए भी एक तरह से अच्छा ही है कि एक प्लेस जहाँ पे आप इतना स्ट्रांगली मिसफिट होते, तो उसमें यू आल्सो अवॉइडेड इट. सो ऑफ कोर्स वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 7 मिनट का इंटरव्यू क्यों हुआ था, नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर हुआ है तो इट्स फाइन. आई थिंक यू हैव आल्सो अवॉइडेड अ सिचुएशन एंड दे हैव आल्सो अवॉइडेड कि जहां पर बिल्कुल फिट नहीं होना था. फिर वो उस तरह की जगह हो सकती थी कि जहां पर 2.5 महीने बाद आप इवेंचुअली छोड़ जाते हो उस जगह को. इट्स आल्सो पॉसिबल दैट हैपेंस. एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब कंपनी बहुत ही क्विकली हायर कर ले कोई, या कोई बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस के बगैर हायर करे ना, वो बहुत ही जल्दी फायर भी कर सकते हैं. तो जितना कंपनी केयरफुल होती है इन हायरिंग यू, उतना यू कैन रिड्यूस कि वो कंपनी जो है ना इज नॉट जस्ट गोइंग टू हायर एनीवन दैट इज अ मिसफिट. तो और जो आपको बस एक इंटरव्यू हुआ आधे घंटे का उसमें आपको हाँ भाई ठीक है आप आ जाए शुरू कर लें, तो आप समझ लें कि आप आधे एक घंटे के अंदर फायर भी हो सकते हैं. तो वो और कभी कभार ये होता है कि मे बी यू आर, अगर आपको बार बार इंटरव्यूज में जा रहे हैं और आप इंटरव्यूज दे रहे हैं एंड यू आर नॉट फाइंडिंग सक्सेस, मे बी यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग इंटरव्यूज. Maybe you should kind of
टेक अ स्टेप बैक, डिफरेंट तरह के रोल्स पे अप्लाई करें, या डिफरेंट तरह की कंपनीज में, या डिफरेंट जगह पे, या व्हाटएवर. तो या अच्छा, एक और हैंड रेज आया था बिफोर वी गो टू आयशा हबीब. Junaid कहते, Junaid, you want to add something? Yes, sir. I want to add. It was about the situation. I want to elaborate, sir. ये interview Friday को था, and it was for a technical post. And they asked me about 4 to 5 technical questions, and but I believe I answered four answers right, and one was wrong. So this was the situation. That was what I wanted to ask. चलें, ये मतलब ये कि मे बी वो बिल्कुल बेसिक उनके वो हों कि भाई ये हमारे बिल्कुल फिल्टर क्वेश्चन हैं, और उनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यू टेक द नेक्स्ट इंटरव्यू और उसमें और प्रिपेयर करें, अगले में और प्रिपेयर करें. लेकिन देखें, यू विल इनएविटेबली नॉट सक्सीड इन 80 to 90% ऑफ इंटरव्यूज दैट यू डू. और शुरू में शायद ये रेशियो ज्यादा हाई होती है. शुरू में आप शायद 100 जगह अप्लाई करेंगे तो उसमें से शायद 10 जगह या 5 जगह पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो शायद उसमें से एक आपको जॉब मिलेगी. लेकिन वो भी आपको ओवर टाइम आपने करना होगा. हर इंटरव्यू से आप कुछ सीखेंगे. इवन फीडबैक नहीं भी मिलेगी, यू हैव टू डू सेल्फ असेसमेंट, सी के वो जिस तरह हसीब कह रहा था कि बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये चीज थोड़ी सी शुरू में आप समझ लें कि एक मुश्किल प्रोसेस होता है. तो अच्छा, अब्दुल्ला तारिक, आपका सवाल है कि हाउ इम्पेरेटिव इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटर्नशिप ऑन जॉब एप्लीकेशन. मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि देखें, या तो आपकी इंटर्नशिप कोई की है आपने या नहीं की है, तो मतलब अगर नहीं है तो यू कांट प्रोड्यूस इट ऑन द एप्लीकेशन, और अगर की है तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट. लेकिन अगर नहीं भी है तो अब there's not much you can do about it. Think about कि जो कुछ है उसको किस तरह से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, rather than focusing on कि अच्छा क्या चीज़ मिसिंग है. कुछ चीज़ें जो होती हैं कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मिसिंग है तो यू कैन गो बैक एंड डू सम कोर्स कि भाई ठीक है, फलाने चीज़ में आप कोई कोर्स कर लें जो कि आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत वो वैल्यूबल होगा. एक चीज़ जो कि मैं अगेन इट वुड बी मे बी अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये कि आप जो स्किल्स जो आप सीवी के ऊपर डालते हैं ना, वो ये कि हर किसी की हर चीज़ के अंदर सेम लेवल ऑफ स्किल्स होती भी नहीं है. आप उसको थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आई माइट हैव skills that are irrelevant to this company or this role, and I might have maybe intermediate skills that are more relevant. तो मैं अपनी intermediate skills को ऊपर कर लिख दूंगा, और जो वैसे मेरे ख्याल से मेरी बेहतर skills है मैं उनको नीचे कर दूंगा या even निकाल दूंगा, और फिर I will try to make the best of my intermediate or even a little bit of skills that I have that is more relevant. तो मतलब you don't have to उसकी जो ordering और उसकी जो वो है ना importance, उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस पे फोकस करना है. कि और इस तरह से ये इंटर्नशिप है, अगर तो इंटर्नशिप बहुत रेलेवेंट है डाल दो, टॉप पे डाल दें बेशक. अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट नहीं है तो उसको या नीचे कर दें, या इंटरव्यू वो सीवी का फॉर्मेट चेंज कर लें, या इंटरव्यू में उसके बारे में ज़्यादा बात ना करें. तो यही है कि उसकी रीऑर्डरिंग चलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड रोल एटसेट्रा. Haseeb, you want to add anything to it? No, I think that was good. I just wanted to quickly go to next question, which was about doing masters and so on. So, देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा कि okay, I have lied in some of my interviews in Pakistan कि मेरा कोई plan नहीं masters करने का, which was a lie, right? कि मेरा plan था, right? And then there were cases where I had to tell them, okay, कि मेरा plan है कि मैं after 1 year, 2 years थोड़े से पैसे save करूँगा, मैं जाऊँगा masters करने के लिए. So I think lying is wrong. So or I mean they all know that sooner or later, after 2 years, 3 years, 1 year, we all leave for Europe or for US to do our masters and to progress our career. So again, I mean maybe it's not a good answer, but don't lie. Give them the honest truth, but of course, like present it in a way by saying that okay, that you might be considering doing masters, but not immediately. Maybe after getting 3 or 4 years of experience, and after knowing yourself that you want to do masters in this XYZ area.
So I think, I mean, that way you are just telling them that right now you are not really prepared, rather than saying that you will go to masters after 1 year, 2 years, or 3 years. So keep that open. I don't know, Fahad, what's your recommendation? मेरा ये कि भी while you try to be honest in the interviews, try to be more honest with yourself first, and then honestly मैं ये भी नहीं कि आप सब कुछ आप अपने सारी जिंदगी के plans आप डाल दें सामने. You can be selective about the truth as well. जो truth आपको अगर लगता है कि this truth will hurt you, तो या तो आप उस डायरेक्शन में जाइए नहीं. अगर कोई पूछता है तो आप उसको कुछ थोड़ा सा keep it a little bit open ended कि भाई अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, I am thinking about it, लेकिन ये कि ये मैं अगले साल 2 साल में या 3 साल में I will reassess, उसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ये वो etc. So you can be a little bit honest with yourself, and then maybe be a little bit selective maybe in the interview, and be intelligent about how you position it. Because आप दूसरी साइड से भी देखें, अगर तो कोई इस तरह से किसी को फ्रेश ग्रेजुएट को हायर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि 2-3 साल तो रहे ना, तो अगर आपका 6 महीने में जाने का प्लान है तो या तो फिर आप अप्लाई ना करें और अगर तो प्लान है, एक्सेप्ट हो चुके हुए हैं आप, तो ठीक है, फिर आप इंटरव्यू एज ए स्पोर्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, यू नो कि 6 महीने में मैंने जाना है, आई एम जस्ट डूइंग इट एज ए स्पोर्ट, एंड देन जस्ट टेक इट एज ए स्पोर्ट एंड डोंट वरी अबाउट इट. बता दें ना बताएं, मतलब डू एक्सपेरिमेंट्स विद इंटरव्यूज एटसेट्रा. तो दैट वुड बी माय 2 cents ऑन दी. अच्छा, आप ही का एक और भी सवाल है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जो हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, और खासतौर पे यूएस कंपनीज में, जो टेक कंपनीज में शुरू में होते थे, अब शायद इतने नहीं होते. आई नो कि हसीब तुम भी आई थिंक बता सकते हो, गूगल में शायद वो अब नहीं होते. So I mean, अभी थोड़ा कम हो गए होने, ठीक है, but we still ask questions. जिसका पर्पस जो होता है कि हमने ये चीज लर्न करनी होती है कि थॉट प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है. गिवन अ प्रॉब्लम, गिवन लेट्स से एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ठीक है, आपने इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया. सो दैट्स द इंटेंट. बट यस, आई मीन वो चीजें काफी कम हो गई हैं. हाँ, लेकिन अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ये आ जाता है ना, तो वो उसका स्पेसिफिक आंसर से ज्यादा वो थॉट प्रोसेस देखना चाह रहे होते हैं. तो ट्राई टू प्रैक्टिस लाउड थिंकिंग, कि आपका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है. कभी कभार यस, सम क्वेश्चंस हैव गुड आंसर्स एंड बैड आंसर्स, सम क्वेश्चंस डोंट हैव एनी बैड आंसर्स, दे जस्ट वांट टू सी हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन. क्या आप कोई उसमें कोई और क्वेश्चंस करते हैं, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं, जिस तरह हसीब ने बताया कि ट्राई टू यू नो बी इंक्विजिटिव. और फिर ये कि मे बी यू गेट हाफ द वे देयर, मे बी दे गिव यू सम हिंट्स टू हेल्प यू मूव ऑन, मे बी दे डोंट, लेकिन मेनली वो थोड़ा सी कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे होते हैं. दे नॉट नेसेसरली कि भाई आपने एकदम से कि भाई राउंड है कि नहीं है, आपने बस कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला एकदम से लिख दिया, इस तरह से नहीं होता. अच्छा, नेक्स्ट सवाल पकड़ लें. व्हाट रोल डज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्ले इन द जॉब एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू? सो मेरा आंसर में ये है कि आई मीन अनलेस कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो उस चीज से जिस पर कंपनी काम कर रही है, अगर वो नहीं है, सो आई मीन देन इट्स लेस इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपको पता है कि आपने उसमें एफआईपी में किया क्या है, both from a technical perspective and also what exactly were your non-technical learnings. कि आपने जैसे आपके पास अब 1 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, how did you approach solving that problem, right? Again, FIP में results, again मतलब ये कहना आसान है, but I mean if I look back, तो वो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट वो जो प्रोसेस था कि हमने मतलब एक डायरेक्शन में शुरू किया, फेल हुए, वापस आए, हमने एक डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ों को किया एंड सो ऑन. तो अगर इवन हो कि आपके रिजल्ट्स इतने सब्सटेंशियल नहीं है, बट वो जो प्रोसेस था, लर्निंग का प्रोसेस था, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चीज़ लर्न किया है, एक बड़ा प्रॉब्लम था, सॉल्व करने की कोशिश की है, मिस्टेक्स हुई, आपने उनमें से सीखा एंड सो ऑन. सो इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट पर्सपेक्टिव, आई थिंक दैट्स गुड. बट ऑफ कोर्स मीन जो आप लोगों के मतलब होंगे इंटरव्यूज, उसमें एफआईपी के बारे में सारी मतलब डिटेल्स में पूछेंगे कि मतलब टेक्निकली चीजें कैसी की गई एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आपको मतलब पता होना चाहिए. ये आंसर के
कि ये मॉड्यूल मेरे आई डोंट नो जो बाकी लोग थे टीम थे उन्होंने किया था, दिस इज अ वेरी बैड आंसर, ठीक है. If you're part of that FIP team, you should be able to answer each and every question considerably. ठीक है, तो किसी और दूसरे को मतलब ब्लेम देना या किसी दूसरे की तरफ फेंकना बॉल की उसने ये चीज की थी, नेवर डू दैट. अच्छा चलो, आई थिंक अब रैप अप करते हैं. एनी क्लोजिंग कमेंट्स हसीब? नहीं, आई थिंक या मतलब एक तो मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि again, like we said, that this session was all about non-technical aspects of the interview, right? So what I learned mainly was from that interviewer training that I did myself, which I did as part of my company. So I mean, spending a couple of days on those sorts of training or reading maybe one book can help you a lot. That's one thing. Secondly, I mean, we talked about doing a good research. So research, I mean, do a research about the role, about the company, their mission statement, what they're doing, and also about the interviewer, right? And like Fahad said that, yes, I mean, stories are important, right? So whatever you do, if you like wrap it up in a story, then you will be remembered by them. अच्छा, मैं एक एंड में आई गेस ये कहूँगा कि इंटरव्यूज जो है ना, इट्स जस्ट अ वेरी टफ, वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस. सो और ख़ास तौर पे जब आप व्हेन यू आर डूइंग इट, तो वो हमारे लिए शायद कहना आसान है टू हैव फेथ, हो जाएगा. लेकिन आई नो कि वो ऑन द अदर साइड इट्स मोर डिफिकल्ट एंड मोर हाई प्रेशर. सो लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि yes, do prepare for it. You don't have to over prepare because there are always unexpected situations. So prepare for unexpected situations by being in unexpected situations. The more interviews you do, the better you will become implicitly. लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी reflection के साथ कुछ different चीजें try करके, you might be better off as well. कुछ I know it is sometimes unfortunate and not a मेरे ख्याल से इस सेशन के लिए I don't know if it's a good thing to say, लेकिन बहुत सारे roles, बहुत सारी चीजें जो है ना वो through professional networking भी होती हैं that you get your foot in the door. अब ये अगर आप फील करते हैं कि भाई मेरा कोई नेटवर्क नहीं है तो इतना आसान नहीं होगा, yes, लेकिन reach out to people. बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे आपको जवाब नहीं देंगे, कई लोग जवाब दे देंगे. डोंट रीड टू मच इनटू इट, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉट ऑफ फेलियर्स, सेटबैक्स एंड जस्ट कीप गोइंग. तो ये चीज़ वैसे ही जनरली इम्पोर्टेंट है. और दूसरी एक और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जस्ट सो दैट यू डोंट थिंक दैट इंटरव्यू इज द बी ऑल एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. बहुत सारे जो बड़े सक्सेसफुल दुनिया में लोग हैं वो इस तरह से भी हुए हैं कि उन्होंने इंटरव्यूज किए, जॉब्स ढूंढने की कोशिश की और कहीं किसी ने जॉब नहीं दी. वो जनाब डिजेक्ट होके उन्होंने कहा चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ, और फिर उसके अंदर इतने सक्सेसफुल हो गए. ये व्हाट्सएप वाला जो बंदा था जिसने पता नहीं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की व्हाट्सएप बेची थी फेसबुक को, उसने फेसबुक में इंटरव्यू किया था, फेसबुक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. उसके बाद फेसबुक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी कंपनी खरीदी. I mean, I think he was rejected by both Twitter and Facebook, and then he ended up creating WhatsApp. I mean, it's like both examples, and definitely. हाँ, I know. ये मैं शायद कुछ outliers बता रहा हूँ. Maybe ये हर किसी के साथ नहीं होता है. I'm not saying that is what you target कि भाई आपने सारे interviews fail करके ये करना है. लेकिन ये कि do prepare for interviews, do go for job interviews, but have a broad horizon. Don't think that it is a reflection on you or on or your destiny. Be open. Life will unfold, and and you'll be all right. So यही मैं कहूँगा. ठीक है, थैंक यू फाद भाई, थैंक यू हसीब भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर स्टूडेंट्स. आई होप बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहा होगा. और गाइस, जिसको भी जो भी क्वेश्चन है, हसीब भाई, फाद भाई दोनों ने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है. आप लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मुझे रीच आउट कर लें आपको, जिसके सबके भी
आपकी रिक्वायरमेंट है तो विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस आउट. तो नेक्स्ट सेशन विल बी ट्राइंग टू कवर CV मेकिंग, CV enhancing skills. वो आई थिंक 16 से आप लोगों के फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई विल बी इन टच विद स्टूडेंट्स. तो फाइनल्स के बाद इंशाल्लाह हम CV मेकिंग पे भी उसी जो कॉमन मिस्टेक्स हम इंटरव्यूज लेते हुए देख रहे होते हैं CVs में होती हैं, तो CV enhancements पे भी करेंगे. With that, thank you Fahad bhai, thank you Asi bhai once again. Thank you guys, best of luck with your exam. Take care, stay safe, have a nice weekend. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.